थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. दिस इज सिनिन्फो. सिनिन्फो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा माध्यम है. As of today, I actually like calling it like the incubators for the entertainment industry, because we believe in providing four main verticals. One is, of course, in terms of getting you experts like we have today. Very important for you to get direction, knowledge, insight, experience from the members whom you should follow, whom you should learn from. सबसे बड़ी बात ये है कि हमें हमेशा पता नहीं चलता है कि किससे सीखें, किसको फॉलो करें, कौन ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में जिनको अगर हम फॉलो करें, जिनकी हम बातें सुने, जिनसे हम एडवाइस ले, वी विल गेट टू लर्न मोर. So that's what is our first main intent, to get you access to the top names in the industry whom you can follow, whom you can learn from. And in order to do that, हम ये ऐसे sessions करते हैं. That second most important aspect is to be able to also create a community of all members that are there who have joined us, along with many experts also as part of our community. This community helps अगर आप peer to peer learning मतलब अपने ही कैटेगरी में दूसरे लोगों से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ इनपुट्स मांगना चाहते हैं, फीडबैक, you have a platform like that, the Sininfo community. I will put all the links on the chat. Once we have started this session, I'll put it. And then the last is also, we've started something called Sininfo classes, expert classes. We are doing classes which are courses, certified courses by experts with whom you can learn as part of whether it is writing, editing, of cinematography and others. So a lot of this is part of this micro ecosystem, basically to help everyone, support everyone जो अपना career entertainment and arts की industry में बनाना चाहते हैं. And yes, we have our final speaker here. So I will just pin our final speaker. Right. So great. So now we have a full house at least on the speakers, and I will still keep taking in our members. आप सबके लिए आज एक surprise है. Many of you keep joining our sessions and you know how we run it. But आज का surprise ये है कि I will not be conducting it. I have, so to say, a showstopper to conduct today's session. And I would like to introduce my very favorite showstopper, Abhishek Banerjee. Abhishek, thank you so much for Okay. joining. Hello, everyone. Hello, everyone. Thanks for So, taking out time on a Sunday evening. yes, That shows at least you guys are committed. yes, Yeah. Abhishek, you'll be surprised how committed our members and people in the industry are. तो इनको ये नहीं पता था कि आप आज का शो मॉडरेट करने वाले हैं. We had just put you on अच्छा, the speaker, but this is अच्छा. the fun fact. I will not be moderating it. It will be Abhishek who will be moderating, क्योंकि ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें अभिषेक जैसे आर्टिस्ट ही इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. उनके द्वारा जो क्वेश्चंस किए जाएंगे, उनके द्वारा जो the discussion that we will be able to foster today is going to be far more meaningful. I will fall short in terms of being able to do justice to this very amazing panel that we have today. So once again, I thank everyone in the speaker panel to have joined us today. Thank you very much from Sininfo. And I would like to, like I've introduced our moderator, Abhishek Banerjee. He's a well-known member in the film industry. And I don't need to introduce him. You know him from his films. You know him from some amazing characters he has played. But once again, thank you so much for joining. We have the cast of Avalanche today. Who is the team over here of Avalanche today. Iske beyond may I would like to pass on the introduction and carrying forward the entire session. The today, but just to tell you a little bit about Avalanche. Avalanche एक theater है जो मई में in the month of May ये release हो रहा है. It will be showcased in so I'm putting up the details of Avalanche, the theater. It is actually being showcased in Mumbai from the 7th to the 10th of May 2024, which is this year, at 8 p.m. at G5A warehouse in Mumbai. जो इसका poster है और इसके जो details है, we are putting it all on our chat. Plus, it will be on our Instagram. Plus, it will be also on our website. So there are three places. Plus, it is also obviously on the speakers' profiles everywhere. So definitely, we have the cast of this theater group which is performing in May. So the details will be there. Beyond over and like beyond this, Oh, everything, I would want Abhishek to take it forward from here. Abhishek, over to you. okay. Thank you, Dina. Thank you for the lovely introduction. And now I would like to introduce our speakers. We have Gandharv Diwan, who is the director of the play.
He's also the producer, translation, and founder of The Gathered. That's your group name, Gandharv? Yeah, Okay, that's what we call. the group which is coming to you with this play is called The Gathered. Gandharv is an NSD graduate. He specialized in acting, got commissioned by Serendipity Arts Festival to make this play. His recent projects as an actor are The Railwayman and Gulmohar. He's also a visiting faculty at Whistling Woods International. The next speaker would be Shardul Bharadwaj. He's a producer, actor, and again, one of the founders of The Gathered. Shardul is a BAFTA awardee actor, writer, producer based out of Mumbai who works primarily in theatre and films. Some of his notable works are E Baleu, Kutte, and Unpaused. Vikram, do we have Vikram here? He's joined. Yes, we do have Vikram here. Vikram Kocher, my favorite senior since college. He's an actor, NSD graduate who specialized in acting and has featured in several prestigious projects, recently in Donkey and, of course, Sacred Games. Anamika Tiwari, she's acting in the play and she has also done makeup for the play for the actors. Anamika is a graduate of National School of Drama and worked as an actor in the NSD Repertory Company for 6 years. She went on to work in several theatrical productions with notable directors such as Anuradha Kapoor, Atul Kumar, and Ranjit Kapoor. Her filmography includes She, Thai Massage, and Rangbaz, among other films and series. Next speaker would be Shweta Pasricha. She's the actor and also she has done costume designing for the play. She's from Players, Kirodimal College. She has also acted in Arya Season 1 and Season 2. She is an entrepreneur who founded a clothing green room trunks recently. Nice. Sarthak Diwan, executive producer and actor for the play. He got trained at the Drama School Mumbai and has featured in several advertisements apart from his extensive theatre work. He's also worked as a DA for ads and delved into casting. Okay, interesting. So I think सबसे पहले तो मतलब यार आप लोग मिले कैसे? I mean, I know some of you know each other, but I'm sure like how did you guys like meet and think about this play? Like हुआ कैसे? Anybody can answer. Gandhav, you want to start first and Yeah, so I think how we all met and started was Shardul came up with this play. He had read it, like Seagull Publications hai usme. This is basically a Turkish play that we've translated into Hindi. Seagull ने English translation निकाला था उस Turkish play का, तो Shardul read it. He came to me and Rajesh, who was another translator of the play. And we took about 6 months to translate it. And we realized, I mean, then we were trying to first find someone to perhaps direct it. We don't know कौन acting करेगा, क्या होगा. And Shardul came up with this play. Then we got along. We started to look for people. Then we found that Serendipity Arts Foundation kind of takes, they commission plays, and we applied to them. We had several meetings, and then we applied. We got funding from them and from several other people. But Shardul and I were very clear at the very outset about one thing that we didn't want to. We wanted to figure out our own ways and do it very properly, like have a proper set, have a set of actors. Like we didn't want to cast a young actor और उनके बाल सफेद कर दें और बोलें कि आप एक 80 साल के character हैं, because this play actually is a 3 generational story. There's a grandfather, grandmother, there's a father, mother, and the role Shardul plays the young man and Shweta's playing the young woman. And then so we had to kind of figure it out and cast it accordingly, raise it accordingly, do it very properly. And then that took a while. And through that, we approached a lot of people, like we knew that we need to have shows first before we approached actors. क्योंकि आप actors के पास जाते हैं, नाटक लेके वो कहते हैं कब कर रहे हैं, कब होगी rehearsal. So once you have a show, you can then work backwards. And then we approached stalwarts like, Anamika, Vikram, who were much more senior to us, both in terms of experience and everything. And they saw value in the project. We told everybody that if you like the script and if you believe in the script, we're doing it very properly and we're opening at the Serendipity Arts Festival. So a lot of them agreed. Some of them we had to approach. Some people got to hear about the project. Like
we were very pleasantly surprised that, we were thinking कि Vikram bhai को हम कहाँ से approach करें, he'll be too busy. Then Anamika suggested, why don't you ask Vikram? I said, how can we ask him? He's a very busy film actor. He said, no, I'll make time. And he did. And some of it was like that. And in fact, कई लोग तो हमारे teachers रहे इस cast में, जैसे Ashwath sir has taught me, Swarupa ma'am was in my NSD selection, Rajiv sir has taught me at some point in life. So people believed in the project, and I think it's because of many people's support that we could kind of get this going. And I'd like Shardul also to please add. Yeah, I mean, to answer your first question, the first question, how did we get together? So, some brief background for everybody else. So, from the college that Abhishek belongs to, say, similarly, me, Gandharv, I know, Abhishek is much, much, much senior to us. But me, Gandharv, Sarthak, we're from the same time. And also Shweta. So we know each other from our undergrad years, but we've done a bunch of theater together. But the idea was that I don't think with whoever's grace, we've had some amount of work. So I don't think we've been sitting idle and then we wanted to pick up theater. In fact, I was getting back to theater after 4 years. And the play had been sitting with me and Gandhar for almost 2 years because the play spoke to us, the material spoke to us. It's an interesting play in the sense that it's a play in whispers, which we had never come across and was talking about the times that we live in. So we knew that it's an uphill task, and that's why it took us around 2 years to actually make it until Serendipity and some other people came on board. Yeah. और 2 साल तक मतलब the core team was formed 2 years back, or you took that much time to also form the core team? Like, how did Anamika come into the picture? Like, how did you agree to, be an actor and also do makeup? मतलब ये जो multitasking है, that's also very intriguing for me. Like, because that doesn't happen in films, right? Like, हम कभी सेट पे जाके ये नहीं बोलते हैं कि हम इसको भी हाथ बटवा देते हैं, वैनिटी वैन में खुश रहते हैं. तो मतलब यहाँ पे ये इंटरेस्ट कैसे लिया आपने? How did you? So now that's the magic of theater, I think, Abhishek. But yes, Gandharv approached me with this beautiful script, Avalanche. एंड बिकॉज मैं लगातार थिएटर कर ही रही होती हूँ, पर बॉम्बे में फ्रैंकली स्पीकिंग इस तरीके का काम बहुत कम होता है जिसमें हम पूरा वक्त देते हैं, जिसमें हम इतना कमिटेड होते हैं हम सब, मतलब हर लेवल पे. तो ये सबसे बड़ा रीजन था, गंधर्व का कमिटमेंट, शार्दुल का कमिटमेंट एंड पूरे टीम का. और जिस तरीके से ये स्क्रिप्ट को या पूरे प्रोसेस को अप्रोच करे थे, वो एक एक्टर के लिए एक्चुअली बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मुश्किल से मिलता है बॉम्बे जैसे शहर में काम करने के लिए. तो नाटक से तो मैं इस तरह जुड़ी. और फिर क्योंकि हम हर लेवल पे एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्टिंग को लेकर के, साउंड को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, तो मेकअप भी एक्सप्लोर ही करना पड़ा. और वो करते करते मुझे लगा कि ये इसमें भी मजा आ रहा है, तो ये भी करते हैं. मतलब आपने पहले कभी मेकअप किया है? आप जब प्लेस करती थी, थिएटर करती थी, तो आपने एज ये अ अटेम्प्ट? थिएटर, हाँ, थिएटर स्टूडेंट एनएसडी में आपको पढ़ाया जाता है मेकअप करना, तो पढ़ाया हाँ, जाता बेसिक है, मेकअप करना जी आता था. बट जी. बहुत कम मौके मिलते हैं कि आप अपना खुद मेकअप, अपने अलावा किसी और का मेकअप करें. अपना तो फिर भी करते हैं, पर किसी और का करने के मौके मुझे नहीं मिले. इस बार पहली बार मैंने किया. And you enjoyed that? Did you enjoy that? और लव्ड आपको इट, लगा आई कि लव्ड इट. अच्छा क्या ऐसा तो नहीं लगा कि फंस गए मतलब ये काम? नहीं नहीं, Because sometimes बिल्कुल what नहीं. happens, you commit because you want to commit, and then later you feel that, oh no, maybe I should have stayed away. कभी ऐसा moment आया you actually passionately enjoyed it throughout? Because आई I'm हाँ, सो बिकॉज हम कोई भी जो थिएटर कर रहे होते हैं या आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो सब अपने मजे के लिए ही कर रहे होते हैं. तो द मोमेंट मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं कर पा रही, करने में मजा नहीं आ रहा, तो इतने सारे दोस्त थे, सब हेल्प कर रहे थे एक दूसरे को. मैं कह रही थी भाई मैं नहीं कर रही, मैं एक्टिंग करूंगी. बट आई रियली लव्ड इट. okay. Vikram, I mean, you are a very busy actor and you obviously had a very huge release. और आप मतलब मैं जितना जानता हूँ आप हमेशा काम करते रहते हैं, आप कभी भी एक जगह पे नहीं बैठते हैं, and you're always on the go. So how did you find time and how did you commit to this play? What made you commit to this play? Apart from of course that the makers, but उसके अलावा ऐसे क्या चीज थी जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ ये Avalanche ये नाटक आपको करना चाहिए? A few personal things and a few professional calls also on the same time. First thing is that I was not doing theater for a long period of time, and I wanted to desperately get back to it.
But truly speaking, I'm not a person who likes Bombay theater a lot because I हाँ. think that यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ के बोल के काम हो जाता है. So I think अगर आपको जुड़ना ही है वैसे तो more creative aspect is to get associated with films in Bombay. But what Gandharv was doing was a bold step which he was taking ahead because which included a lot of rehearsals. There were different kinds of experiments which were being done, and Cable also came as a moderator for us. So I thought that this is the kind of theater, if it does happen in Bombay, I would want to be a part of it. And जब अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो टाइम का तो खैर फिर आप जी जान लगा देते हैं to be a part of that. So that is how I became a part of it. And I was really looking at कि गंधर्व के पास मैं किसी तरीके से पहुंचूं. So when this thing was happening, I came to know about this play very late. And I think Anamika is my batchmate from NSD. So Anamika was the first person जिसको मैंने बोला था यार, if there is a space there, I would want to be a part of it because it'll be a really good process to unlock yourself again and to rediscover oneself. And I think they had a word, so they had an opening there, and I really vouched for it. I ran into it and I said, okay, fine, I'll be there. I'll do everything whatever you want me to do. So that's what. तो ये टिपिकल बॉम्बे थिएटर जैसा बॉम्बे थिएटर नहीं है. ये थोड़ा हार्डकोर थिएटर वाला मटेरियल था, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बाकी जो बिजी रहने की बात है, हाँ यार, कभी काम करते करते आप चाहोगे अपने जीवन में यू शुड बी एसोसिएटेड विद क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आल्सो. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्वालिटी प्रोजेक्ट्स. Scheduling की प्रॉब्लम कभी हुई, कभी ऐसा हुआ कि शूट आ गया या कुछ हो गया, एंड देन हाउ डिड यू मैनेज दैट? आई एम श्योर हुआ होगा. हाँ, हुआ है ना, अभी भी हो ही रहा है, सच में होता है. सो आई थिंक अभी ट्रिकी थोड़ा सा होता होगा, पोजीशन, लाइक इट इज वेरी ट्रिकी, राइट? एक साइड पे प्रोफेशनली आप कर रहे हैं, ये भी आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, दोनों में आप किसको चूज करेंगे? मतलब किस तरह से, हाउ डू यू हैंडल दैट, और हाउ डज ये द टीम हैंडल दैट? दिस टीम, इनफैक्ट टीम इज क्वाइट स्केड्यूल्ड. ये हम लोग को 1-2 महीना पहले ही पूरे स्केड्यूल्स के बारे में पता चल जाता है, अनलाइक फिल्म्स. सो फिल्म्स बहुत इम्प्रॉम्प्टू होती हैं, बट ये क्या कहते हैं, जब ऐसा कुछ हुआ तो इसके स्केड्यूल्स पहले ही 2 महीने पहले ही अगर आपके पास होते, सो इट इज इजियर फॉर अस टू डू, मतलब टेक आउट टाइम विद द अदर प्रोजेक्ट्स. एंड हाँ, कुछ कुछ बीच में अगर हटता भी है, छूटता भी है, तो आई थिंक इट इज वर्दी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ठीक है, पैसे की जहां तक बात है वो आप कमा लोगे. बट हाँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 2 क्वालिटी प्रोजेक्ट्स इकट्ठे मर्ज हो रहे होंगे, वो अभी तक हुआ नहीं है, एंड आई होप कि आगे भी नहीं. बट आई हैव बीन टेलिंग गंधर्व कि भाई फिर भी एक सेकंड कास्ट तैयार रखना, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कैसा कुछ हो जाए. बट वो किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज शार्दुल इज डूइंग गुड वर्क, अनामिका इज डूइंग गुड वर्क, दे गंधर्व हिमसेल्फ इज डूइंग वेरी, गंधर्व खुद भी काफी बिजी रहने लग गया है. सो वो भी धीरे धीरे करके चीजें बढ़ेंगी. But it is manageable. If you want to manage and want to be associated with it, I think one can manage it easily then. I feel it's a will, right? When the group has the will, then it becomes easy. Find the Because I way. think main वही होता है कि जब हमें करना है, हम डाउट में होते हैं कि शायद थिएटर करना है, प्ले करना है. That's what the very interesting thing which शार्दुल said, कि ऐसा नहीं था कि कुछ और करने को नहीं था तो ही किया. ये करना था तो किया. कोई नाटक पसंद आया और उसके बाद आई थिंक द जर्नी स्टार्टेड. सही है. श्वेता, And यू एक और चीज, हाँ सॉरी अभिषेक, एक चीज और बोलो होती बोलो. है कि हमें शुरुआत में ना, द डेस्पिरेशन ऑफ वर्क इन बॉम्बे एंड सर्वाइवल इन बॉम्बे, कभी कभार आपको चॉइस, आपको लगता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, एंड यू हैव टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट, वेयर वो हमेशा से आपके पास होती है. बट हाँ, आफ्टर अ पॉइंट यू रियलाइज कि आपकी सुनी जाएगी और आपकी चॉइस है, यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द अदर पीपल, सो आप अपने कॉल्स ले सकते हैं. तो ये वो स्टेज भी थी शायद जहां वो कॉन्फिडेंस गेन किया, तो यहाँ मैं अपने कॉल्स ले सकता हूँ अपने फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स के, जहां मैं उनको जाके फॉरवर्डली कह सकता हूँ कि भाई आई हैव अ थिएटर प्रोडक्शन एंड आई हैव अ परफॉर्मेंस टू बी देयर, सो वो आप कर सकते हैं, और उसके लिए आपको मेरे लिए जगह बनानी पड़ेगी. तो वो होता है. आपने कितने टाइम बाद स्टेज पे मतलब हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? आई लास्ट थिंक टाइम आपने कब प्ले कब किया? 5-6 years.
around 5-6 years. और कुछ लगा change on voice quality or like did you face any difficulties as an actor because the medium is completely different, right? कैमरा में जब हम काम करते हैं तो बहुत अलग तरीके से काम करते हैं और मुझे तो अभी भी पता नहीं, अगर मुझे कोई स्टेज पे खड़ा करेगा तो मैं किस तरह से एक्टिंग करूंगा, शायद मैं स्टेज एक्टिंग भूल चुका हूँ, ऐसा लगता है, पता नहीं, शायद वो मसल मेमोरी याद आ जाए। लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ, like did you find it difficult? As far as I know you as an actor, I think you will still do wonders on stage. अरे नहीं नहीं, बट वो है आप सच बताओ पर आप बताओ, आपको लगा कभी ऐसा जिटर्स हुए, कुछ हुआ, like how was it coming back to stage? थोड़ा डर जरूर लग रहा था, बिकॉज मुझे लगा कि भाई स्टेज पे थोड़ा आपको जेस्चर पोस्चर वाइज थोड़ा लाउड होना पड़ेगा, बट लकीली दिस प्ले इज अ वेरी इंटीमेट काइंड ऑफ अ थिएटर एंड हम लोग काफी कम लोगों में नाटक करते हैं और इसमें इसलिए काफी रियलिस्टिक जोन के अंदर आपको रहना पड़ता है। ऑफ कोर्स प्ले बहुत बिकॉज प्ले है तो प्ले थोड़ा सा एक बात भी कहता है और उस बात को कहने के लिए अनलाइक फिल्म्स आपके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट्स द काइंड ऑफ अ प्ले इट इज। सो इट इज मुझे इनफैक्ट और आसानी हुई बिकॉज आई थिंक कैमरे के सामने बहुत काम कम करते रहती है करते बड़ी यूनिट के साथ काम करते करते आपको ऐसा लगने लगा कि या कैमरे के सामने वो कॉन्शियसनेस थोड़ी सी हट गई है एज एन एक्टर। So surprisingly, I was much at ease while performing this. हाँ, थोड़ा मूवमेंट को लेके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि इतने बड़े खाली स्पेस में मैं खड़ा हूँ तो ब्लॉकिंग सही है कि क्या है, वो थोड़ा सा थोड़े दिन के लिए, एक आध दिन के लिए कुछ हुआ, बट आफ्टर दैट इट वाज ऑल ओके बिकॉज these guys were sorted and Shardul and Gandharv were really good help. So धीरे धीरे करके बाकी कास्ट was also a very good help. और इतना मूवमेंट है नहीं मेरा पर्टिकुलरली इस प्ले में अभी, so it was nice. It was nice. It was much better than what I used to do earlier. Hoping to catch it soon. Hoping to catch it soon. Please do. Shweta, you have done the costume also and you're acting also in the play. Just tell me, like, Yes. how do you manage the dual role? Yes. Hi, Abhishek. Hi, Dina. Hi. Thank you for doing this with us. Honestly, जब आप अभी अनामिका से भी बात कर रहे थे ना इस बारे में, आई थिंक मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, बट थिएटर मेजरली हमारे कंट्री में कम्युनिटी से ही होता है। बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम पैसे लाने हैं, कुछ भी करना है, आई डोंट थिंक समटाइम्स देयर आर ऑप्शंस कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो। लोगों को साथ में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, स्पेशली हियर एज वेल। Actors in the play are also producing. Actors in the play are doing makeup, production, whichever one quality that they think they also have and they're interested in and they like. And what's also changing with time, I feel, Abhishek, is, yesterday my mother's here in Bombay with me right now, and there were a few people who came home, and my mother, I was introducing them to her for the first time, and she asked, "Beta, what all do you do?" She never, like, I remember people used to ask, "कि आप क्या करते हो?" कि आप या डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, एक्टर हो गए। आई थिंक दैट्स रियली चेंजिंग, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज there are so many layers. I have so many friends who write, who act, and if you're involved in the process of filmmaking, people, I'm sure you as well, you're a great example, I think, for this. You do so many things. People today wear so many hats at the same time. So मैं तो on board थी कि ये भी करना है, ये भी करना है, because the process that we come from, I think, like Shardul mentioned, that we come, we'd all gone to Kiruvadimal College, we'd done theatre, started our practice from there. जिस किस्म की चीजें हमने सीखी है वहाँ, आई थिंक वो यहाँ जो सब बार बार बोल रहे हैं बॉम्बे में बहुत कम अप्लाई होती हैं। तो मैं, आई थिंक, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस कि लोगों के थॉट प्रोसेस बहुत किस्म से बहुत मैच करते हैं, एंड दैट वाज रियली फन टू डू, बिकॉज मैं कॉलेज के बाद से बहुत वक्त से थिएटर से जुड़ना चाह रही थी। इनफैक्ट आई रिमेम्बर डूइंग अ प्ले इन कोविड वेयर इट शट, एंड वी स्टिल went on and did it online. We made a play online and performed it in Germany and France. तो and then तो बहुत वक्त से ढूंढ रही थी बॉम्बे में कहाँ जुड़ूं, किसके साथ, and I think Avalanche was the best thing that happened to me this year. और आपने कभी कॉस्ट्यूम्स किया है एज लाइक प्रोफेशनली, कहीं पर किसी भी नाटक के लिए कहीं पर कभी किया है? So I used to design clothes for my own self, बचपन से, in fact.
Okay. And wherever I'd go out, people would ask me, ये कहाँ से है, ये कहाँ से पहना है, and I'd be like, ये मैंने ही बनाया है, और लोग हंसते थे कि अरे really, no, tell me where is it from. And being in Bombay, I really started the company Green Room Trunks for the love of theatre, because I was thinking I'd do this just for theatre. Also just to design costumes जो मुझे पसंद है, मेरा मन करता है अपने वक्त में मैं बनाऊं और मैं डाल दूंगी. People want to like it, people buy it, great. That's how it happened with me. Amazing, amazing. सार्थक दीवान, आई मीन मैं फिल्मों के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से वाकिफ हूँ, मुझे पता है किस तरह के काम वो करते हैं या नहीं करते हैं, पर कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट यू, लाइक यू नो व्हाट काइंड ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इन अ प्ले प्रोडक्शन? आई थिंक ऐसा कोई, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो अब मेरे को सुनते हुए भी ऐसा लग रहा है कि अरे यार, हम पहली बार ही कितना कुछ कर रहे थे कि हमने मेकअप जिन्होंने किया उन्होंने पहली बार किया है, कॉस्ट्यूम जिसने प्ले के लिए करे उसने पहली बार करे, नाटक हाँ, बॉम्बे जबकि में पहली मुझे बार लग रहा हुआ था कि शायद पहले किया हुआ है मुझे। है। मेरे को भी यही लग रहा था कि अरे यार सब कुछ ही पहली बार, हमने सही में सब कुछ पहली बार किया है, बट यही बात है कि हमारे जहन में कभी ये आया ही नहीं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं, क्या है। तो आई थिंक यही है, क्योंकि हम कभी ना कभी ये सब चीजें कर ही रहे थे। जब भी हम नाटक बनाते हैं, चाहे कॉलेज लेवल पे बनाए या कहीं बाहर किसी के साथ बना रहे हो, कुछ सीखते हुए जब बना रहे हो, जब कोई क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, तब भी आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आप हर चीज कर रहे होते हैं। आप ये सोचते नहीं कि उसका औधा क्या है करने का, ये पर्पस क्या है, ये एग्जैक्ट वो क्या है, आप बस कर रहे होते हैं। तो ये प्रोडक्शन में भी बस वो हो रहा था कि क्या जरूरत है बताओ, वो करते हैं। अब उसका नाम प्रोडक्शन है तो ठीक है। तो मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब चाय लाने से लेकर सेट्स अरेंज करना, इज इट लाइक ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक दैट्स हाउ? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बट हमारे कास्ट में ऐसे लोग अपनी खुद चाय लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, अरे क्योंकि बड़े सबकी चाय अलग डिसिप्लिन है कास्ट किसी है। की। अच्छा। बट ओके। हर तरह के काम है, फ्रॉम जैसे अब हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं जिनके, क्योंकि शेड्यूल मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है, बट हाँ। काफी गिविंग लोग हैं हमारी कास्ट में जिन्होंने प्रायोरिटी रखी है इस चीज को, और ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है हमें। तो ऐसी वाली चीजें मैनेज करना, प्लस कहाँ हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अगर हम कहीं पे अपना शो कर रहे हैं तो वहां पे हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कास्ट क्रू को क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, वो सब चीजें, मतलब बेसिकली जो जो एचआर का काम होता है वो सब से लेकर के जो जो एक स्पॉट का काम होगा वो सब भी हो रहा होगा इसमें तो। तो आपके काम में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी दिख रही है मुझे, या बहुत ज्यादा कॉल्स दिख रहे हैं, लाइक यू नो यू ऑब्वियसली लाइक you just said that you also did the scheduling for the show, right, या with या actors. या या So how did you manage to be in character when you were on stage? Did that? या वेरी डिफिकल्ट टू टर्न Yeah. ऑफ एंड ऑन। ये काफी बार हमारी डिस्कशन भी होती थी बीच में कि कैसे कि Hmm. गंधर्व से मुझे डांट भी पड़ती थी कि ये क्या कर रहे हो तुम, इतना लाइटली क्यों ले रहे हो। मैं कहा मैं लाइटली नहीं ले रहा हूँ, बट ज्यादा हैवी हो गया है तो पता नहीं चल रहा है। बट आई थिंक काफी सारे, मतलब हेल्प हमें काफी मिली एक्चुअली। हमने जिस भी जगह पे बोला कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, लोगों ने अपने आप हाथ बढ़ा के बोला कि हाँ बताओ क्या चाहिए, हम करते हैं। तो उस तरीके से हमें कभी अगर जरूरत हुई प्रोडक्शन इंटर्न की, तो हमारे पास दौड़े दौड़े लोग आए कि हाँ हमें जरा अब बताओ क्या करना है, हम करेंगे। और कभी भी इसमें कोई ऐसी बात, मतलब ये ये कोई ट्रांजैक्शनल डील कभी किसी के साथ नहीं हुई है। हमेशा एक तरफा गिविंग चीज ही हुई है कि हर हर आदमी ने हमें देना ही चाहा है, और वो बहुत एक अच्छी बात है। वो एक्टर्स भी हैं और वो हमारे बाकी प्रोडक्शन के भी लोग हैं। तो हाँ, वो आंसरिंग योर क्वेश्चन की कैरेक्टर कैसे वो करे, तो वो स्विच ऑफ करने के लिए फिर वो हेल्प करते हैं कि आप अब ये तुम ध्यान रख लो यार, मैं जरा इधर जा रहा हूं। तो वो हो जाता है, बट वो कई बार मुश्किल भी हो जाता है। बट वही फन है, फिर वही थिएटर करने का आई थिंक मजा है कि कब आप ऑफ ऑन कब हो रहे हैं और किस फ्रीक्वेंसी पे आप काम कर रहे हैं लोगों के साथ। And one more thing So, I'd like to add, Abhishek, that we're a first time, like हमने ग्रुप बनाया ही इसलिए था क्योंकि शार्दुल और मेरे को ये नाटक बनाना था, तो हमें ग्रुप खोलना पड़ा. And we were first timers, so I mean the play fortunately has come out well. तो तब बात हो रही है इधर उधर, पर हम पहली बार अप्रोच कर रहे थे लोगों को. तो सार्थक being a production manager नहीं या executive producer नहीं, someone that we could trust with the money. We could trust in the manner in which he'd talk to people. And then and क्या है, even though we had a Herculean task कि हमने 12 लोगों की कास्ट का नाटक बनाया था जो already बहुत लोग हैं. उसके बाद we couldn't afford to have too many people in the production, and unlike conventional theatre practice, I had made sure that if I'm
asking people for their time. We're also giving them adequate compensation. So, and also upkeeping good practice. I think it's one of the very rare occasions where in, urban theater या बॉम्बे थिएटर पर से हमने कास्टिंग कॉल्स निकाले थे. हमने कहा था नए लोग हमसे जुड़े कि आप अगर चाहते हैं आपको, क्योंकि क्या होता है इन माय ओपिनियन कई ग्रुप्स हैं बॉम्बे में जो बहुत साल से काम करते हैं पर बहुत क्लोज्ड कास्टिंग होती है, आपको जुड़ने के उतने मौके मिल नहीं पाते. हमने लोगों को कहा था आप रिहर्सल में आना चाहते हो आप बैठो, क्योंकि शार्दुल एंड माय अटेम्प्ट इज टू मेक अ कलेक्टिव. That's why we do Thursday screenings as well, so that people can come in, have a space where they feel firstly safe, where they feel included. And that's why people who were doing multiple jobs had to. We got a lot of actors that we now know and a part of us we'd not known at all, and applied through that casting thing. And my मैंने एक चीज अपने डैड से सीखी है. He does a lot of these high stake gigs sometimes. He tells me you should always kind of work with someone who wants to do that job. Then Sarthak wanted to do that job. Like जो हमारा सिनोग्राफर है, बहुत बड़े बड़े सिनोग्राफर्स हैं इंडिया में, पर वो नया NSD का लड़का था. I knew him. I told him, do you think you are ready to take this huge responsibility? Because you're as good as the opportunities you get. मैंने कहा तेरे पास मौका है, तू कर लेगा, तू संभाल. और हमने स्केल का नाटक रखा, but if he's willing, if he's ready, if he got scared and said no, maybe not, then you go back. And we couldn't afford the big names, honestly. We couldn't afford to get a proper designer, but we had a scale, we had a vision, we had a dream, and we were like, if you want to work, I have a great opportunity for you. Aage you see what you do with it. So And just adding on, just adding on to Gandharv and Abhishek, you know this so well. I mean, you've done films like Ajji and everything. So and you work with Dave so much. Our practice in theater, what a lot of us maybe at NSD or wherever we were doing theater or how we're doing theater right now has sort of flowed into cinema also. So on a particular, especially now that there is an independent cinema boom, you cannot, I don't think you can be on a set and say that I'm an actor. आपको कॉस्ट्यूम में हाथ बटाना पड़ेगा, आपको मेकअप में हाथ बटाना पड़ेगा, केटरिंग में हाथ बटाना पड़ेगा, तभी हम अपनी किस्म की फिल्में, अपनी किस्म का थिएटर उतने पैसे में बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे. और तो कभी कभार वो लोगों को चाय भी पिलानी पड़ेगी अपने हाथों से. कभी कभार मतलब पिलाइए, बिल्कुल पिलाइए, पकौड़े लाइए, खिलाइए. और आप नहीं कह सकते कि मैं भी कैरेक्टर में हूं, क्योंकि पैसे नहीं है. करेक्ट. And there are some मैं actually practices. There's some मैं इसी practices. पॉइंट पे, हाँ, Yeah. sorry Gandharv, go on. No, I'm saying that there are some practices that, unlike film, there is a set pattern, and I understand that, there's a division of jobs and labor that set people do their set work. In theater, for example, हमें सामान उठा के गाड़ी में लाना पड़ता है. हम लोग की कईयों की गाड़ियां और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल बन जाती हैं. हम लोग की everybody in general practice, the most senior most actor without naming her, she used to wash the utensils. So हमने डेमोक्रेटिक रखा होता. ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्शन वाले हैं तो ये यही करेंगे. So that's why, if I may say so, Anamika's done a lot of theater, but Anamika might not have agreed to do that makeup in other spaces because she was seeing that शार्दुल और मैं भी सब उठा रहे हैं. चाहे हम पेपर पे कोट एंड कोट कोई प्रोड्यूसर हो, लीड एक्टर हो या डायरेक्टर हो, हम काम सब कर रहे हैं. मतलब स्पेस क्लीन करना, सेट लगाना, ये सबका काम होगा. तो ऐसा नहीं कि कई दो लोग, एक प्रोडक्शन असिस्टेंट है वही करेंगे, उनकी सब मदद करेंगे, सब लोग करेंगे. So that was a non-negotiable from the beginning. Sorry. And just to I'm just curious that all of you are working in the film industry, and that will remain the first choice of profession, और आप में से किसी ने भी ये सोचा है कि हाँ शायद फिल्मों से बोर हो चुके हैं, अब हम थिएटर की तरफ बढ़ेंगे क्या? मैं ऐसी रैंडमली सवाल फेंक रहा हूँ because it's very interesting and intriguing also for the listeners, because the next question जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर आने के लिए मुझे इस सवाल पे जवाब जरूर चाहिए कि आप लोगों ने कभी अपने जिंदगी में ये सोचा है कि फिल्म के अलावा कुछ और करना है, या you want to stick to the film profession and you're committed to that at least for now? Sorry if I may talk about this. Yes, Vikram. Yes. Yeah. पहली चीज जो ये है कि personally, and I think there are a lot of other people would also agree with me, कि
थिएटर और फिल्म, मतलब ये क्वेश्चन का जहाँ से जन्म होता है वो शायद उसमें एक हल्का सा इस चीज का एहसास है कि थिएटर और फिल्म कंपैरेटिव के तौर पे लिए जा रहे हैं। Whereas I have been, I believe that theater and films are not comparable to each other. They both are different art forms. So I don't want to put myself into a situation where I want to choose. And I want to be in a situation where if I think about a project, if I think about the script, whether the medium is theater or whether the medium is film, I would want to do that. Sometimes you would want to translate a film into a theater piece because you think कि उस मीडियम में वो थोड़ा बेहतर ट्रांसलेट होगा। कभी कभार आपको लगेगा कि किसी थिएटर पीस के ऊपर फिल्म बना दी जाए। बट इफ देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट व्हिच इज हैपनिंग एंड आई आर्टिस्टिकली आई फील कि मेरा एसोसिएशन इस आर्ट पीस के साथ होना चाहिए एंड आई कैन डिलीवर समथिंग टू दिस आर्ट पीस, then I want to be a part of that art piece without thinking whether it is a film or theater. तो कहीं से मूवमेंट जो है वो लाइन मार्क नहीं करना चाहूंगा कि अब मैं थिएटर ही करूंगा या मैं अब मैं फिल्म ही करूंगा। भाई दोनों करूंगा, दोनों ही आर्ट फॉर्म्स है और दोनों के साथ एक दूसरे का कोई कंपैरिजन नहीं। आप जैसे फोटोग्राफ और पेंटिंग को कंपेयर नहीं कर सकते, बट अ गुड फोटोग्राफर कैन बी अ गुड पेंटर ऑल्सो एंड अ गुड पेंटर कैन बी अ गुड फोटोग्राफर ऑल्सो। अब उसके मन पे, तो हम फ्री हैं, आर्टिस्ट हैं, फ्री रहने दो। वैसे ये मेरा सोचना है। So this brings me to the first point of topic जो हमारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे और है कि how theater is not just a stepping stone to cinema and should not be considered one। क्योंकि ये आई थिंक हम सबसे ज्यादा एक मिसकंसेप्शन रहता है जब हम बॉम्बे में आप जब विक्रम आप पहले बोल रहे थे कि बॉम्बे के थिएटर आपको पसंद नहीं है। बहुत लोग ये बात मैंने देखा है कि जब दिल्ली थिएटर करके आते हैं या कहीं और से आते हैं, ये हमेशा अक्सर सुना है मैंने कि थिएटर आर्टिस्ट को पसंद नहीं आता है बॉम्बे का एक थिएटर कल्चर इन अ वे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं अगेन वो प्ले या नाटक में जब हम काम कर रहे होते हैं या स्टेज पे जब परफॉर्मेंसेस होती हैं वहां भी कहीं ना कहीं चाह यही होती है कि कोई डायरेक्टर या कोई कास्टिंग डायरेक्टर या कोई इम्पोर्टेंट फिल्मी इंसान आपको वहां से पिक कर ले या चूज कर ले। वैसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां पर डायरेक्टर्स ने एक्टर्स को लिया है। बट इस बारे में बात करते हैं कि कैसे, मतलब इट्स नॉट रियली अ लैडर टू क्लाइंब, जो अभी विक्रम ने बोला कि हाउ बोथ आर मीडियम्स and as an artist you have a choice of working in different mediums। So anybody would like to elaborate on this? Anamika, Shardul, Gandharv, I Shweta? think Abhishek, I think that since हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये तीसरे सवाल में शायद पता नहीं कभी आए भी, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात अगर आपको कहूं तो ये जिस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट से हमें एवलांच मिला था, वैसे 5 ट्रांसलेटेड टेक्स्ट सीगल ने अभी निकाले हैं। तो वो कंटेम्प्रेरी प्लेज हैं ईस्ट यूरोप के, इजिप्ट के, पोलैंड के, रोमानिया के। आप अगर उस कंटेम्प्रेरी काम को अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। एक नाटक है जो सूप की रेसिपी है, बस वो है वो नाटक। अब जब इस किस्म का काम हो रहा है तो ये जो दीवारें हैं थिएटर और फिल्मों की, अब जैसे फिल्मों में भी आ जाइए तो हम 30 साल बाद अभी कांस के पाम दे और में ऑफिशियल सिलेक्शन है, पायल कपाड़िया की फिल्म है 30 साल बाद। तो दोनों तरफ इतना इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। तो एज एन एक्टर तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ अगर पहले थिएटर किया था, अब फिल्में कर पा रहे हैं, तो दोनों को उतनी तवज्जो दी जानी चाहिए, उतने ही क्या कह सकते हैं, उतने ही शिद्दत से दोनों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत नया काम हो रहा है और हम बहुत एक्साइटिंग समय में जिंदा हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ले सकते हैं, मतलब ये भी है बिल्कुल कि क्या कहते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नकार देते हैं, इग्नोर कर बिल्कुल देते हैं, एंड वी ब्लेम इट ऑन others that probably why we are not doing theater। anything? अनामिका, आपको क्या लगता है, आप इतने साल से थिएटर कर रही हैं, फिल्मों ये जो शोज के बात पार्ट रही हैं। ये जो बात विक्रम और शार्दुल बोल रहे हैं कि दोनों अलग, मैं दोनों ही ऑफ कोर्स सिनेमा थोड़ा कम, थिएटर थोड़ा ज्यादा, बट दोनों के डेफिनेटली अपने अलग किस्म के मजे हैं एक्टिंग करने के। आप तो ये मैं नहीं कहूंगी कि कौन किसको किस तरीके से स्टेपिंग स्टोन। इस सवाल पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में थिएटर को सपोर्ट करने के लिए, अगर मैं बिल्कुल ही रूट कॉज पे जाऊं,
बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आप प्रोफेशनल थिएटर बोलते हैं पेपर पे, पर वैसा होता नहीं है क्योंकि उतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो अब मेरे जैसा इंसान अगर थिएटर भी करना है, पैसा भी कमाना है, तो डेफिनेटली मुझे सिनेमा करना ही पड़ेगा। और उसका उल्टा सिनेमा की ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी जगहें नहीं है, तो अगर किसी को एक्टिंग ट्रेनिंग करनी है तो कहाँ, थिएटर से ही शुरू करेगा। आप समझ रहे हैं? तो लेकिन ये ऐसा सब कई बार कहा जाता है कि थिएटर एक्टिंग जो है वो फिल्मों में काम नहीं आती। ये एक तरह का हमेशा एक आर्गुमेंट रहा है। जैसे भी विक्रम ने मुझे बोला कि एक लाउडनेस, एक प्रोजेक्शन की जरूरत होती है थिएटर में। तो मैं इनफैक्ट बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इस बात को लेकर। मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहते हैं, क्या हमारी एक्टिंग स्टाइल या हमारा जो एक्टिंग क्राफ्ट वही बदल जाता है स्टेज पे और कैमरा के सामने कुछ और होता है। तो अभिषेक, ये सिर्फ कैमरा और थिएटर की ही बात नहीं है। आप थिएटर के भी डिफरेंट फॉर्म्स में काम करेंगे ना। आप पारसी थिएटर करेंगे, आपको अलग तरीके से अपनी बॉडी और आवाज को यूज करना पड़ेगा। आप रियलिस्टिक थिएटर करेंगे अलग तरह से। आप तो ये टेक्निक एक्टर को खुद में इजाद करनी पड़ती है कि आप सिर्फ थिएटर करते हैं और लाउड हो जाते हैं और कैमरा के लिए आपको अलग किस्म की एक्टिंग चाहिए। आई डोंट थिंक सो। हर किस्म के हर अलग फॉर्म के लिए आपको अलग तरीके का परफॉर्मेंस स्टाइल चाहिए होता है। नहीं, क्योंकि आजकल एक बड़ा ट्रेंड है, लाइक कॉन्वर्जेशनल एक्टिंग। इट्स आल्सो द सटल एक्टिंग जो एरा where people are very scared to project their emotions, project their voice. So it's a very interesting answer which you just gave, Anamika. Thank you. Shweta, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? I also absolutely agree with how people were mentioning about मैं एक्टर हूँ. I would never want to choose between theater and films. मुझे दोनों करना बहुत पसंद है. बट और ये बात एकदम सच है कि बहुत डिफरेंट स्किल सेट होते हैं. अब वो डिफरेंट स्किल सेट को हम सिर्फ एक्टिंग और थिएटर में नहीं डिवाइड कर सकते. फिल्मों में भी कहीं किस्म की फिल्में बनती हैं. अगर एक चार्ली चैपलिन पे भी चीजें बनती थी, वो बहुत अलग स्किल सेट है, रिक्वायर्ड है फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और रोल. सेम गोज विद द थिएटर एज वेल. तो but I would still like to say, I wanted to say what Anamika really mentioned about. मुझे नहीं लगता अब तक कि मेरी समझ में कि शायद बहुत मुश्किल है थिएटर से घर चलाना. सिर्फ थिएटर करते रहते हमारे देश में. और उस चीज के लिए भी if I also want to act in the films, but I also want to make money. And I think once ऐसा मेरी चाहत है हो पाए कि मैं पैसा कमा लूं वहां से और फिर मैं लगाऊं थिएटर और फिर मैं करूं और थिएटर. बिकॉज लाइक शार्दुल सेड, इतनी खूबसूरत स्क्रिप्ट चीजें हैं अवेलेबल. एंड इट सीम्स लाइक आई सेड, कम्युनिटी बना लेती है. अपने लोग कम लोग मिलके मैं कितने सारे कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करके प्रोडक्शंस बना सकती हूँ. सीम्स मोर फीजिबल एज वेल. अभिषेक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है, मतलब थोड़ी सी हाँ. फिलोसफी है शायद इसके पीछे. बोलिए बहुत साल हो गए आपकी फिलोसफी सुने हुए. तो फिलोसफी ये है कि यार, पैसा आप इसलिए कमाते हो ताकि आपका जो मन करे आप वो सब कर सके, राइट. और अगर आपका मन इस आर्ट फॉर्म में लाया करता है जहां पर आपको कहानियां कहने का मन है, जिसके दो बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम्स हमारे पास हैं, विच इज थिएटर एंड फिल्म्स. तो ये दो मीडियम्स हैं जहां पर आप कहानियां कहने का आपको अच्छा मौका मिलता है. और भी मीडियम्स हैं. अब आजकल रील्स हैं, आजकल अलग अलग तरीके की चीजें निकल रही हैं ताकि आप कहानियां बता सकें. आप वॉइसिंग पे भी कहानियां सुना सकते हैं. तो कहने का अर्थ ये है कि आप करना हमेशा से यही चाहते थे. जब हमने, मेरे ख्याल से कॉलेज में हमने थिएटर स्टार्ट किया, काफी सारे हम में से जो लोग हैं, तो हम लोग करना हमेशा ये चाहते थे कि हमें बहुत सारी कहानियां लोगों को कहने का मन. तो भले ही अब उसके तरीके अलग अलग हैं. आप पैसा कमाकर कहानी बताएं या फिर आप अपनी कहानी बताएं और फिर उससे पैसा जनरेट हो. वाइस वर्सा, बोथ द मीडियम्स. आप किस तरीके से वो चीज अपना क्रिएट कर सकते हैं, वो आप उस फैसिलिटी को कैसे अटेन कर सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि सिनेमा और थिएटर में मुझे एक मेजर फर्क ये लगता है कि सिनेमा में एक्टर के लिए ऑडियंस होती है कैमरा. तो समटाइम्स आपकी ऑडियंस इतनी क्लोज हो जाती है कि आप कभी कभार आप रियल लाइफ में भी प्रॉक्सिमिटी में लोगों के इतने क्लोज नहीं जाते. बिकॉज
you're always performing a story for an audience. So camera is your audience, and camera can move to extreme close and extreme wide, depending on the feeling. Whereas theater में it's a fixed audience, so you are the person जिसको आपको खुद ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ऑडियंस के लिए क्लोज लगे और ऑडियंस के लिए लॉन्ग शॉट लगे अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ इट, और ना मतलब ये थॉट प्रोसेस पे अगर बात करूँ तो इसलिए थिएटर का चैलेंज वो हो जाता है, सिनेमा का चैलेंज ये हो जाता है कि आपको अपनी एक्टिंग के वेरिएशन आपको एक्सट्रीम क्लोज लग जाएगा अगर, तो आप नॉर्मल से भी अंडरटोन करके आपको प्ले करना पड़ता है। शायद उसकी बिकॉज हम पकड़ लेंगे, आपकी सांस ही पकड़ लेंगे। सिनेमा में तो इतना घुसेगा, थिएटर में किसी की सांस पकड़ना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑडियंस दूर है, तो आपको अपने आप को इतना बड़ा करना पड़ेगा कि सामने वाली ऑडियंस आपकी सांस पकड़ सके। सो ये एक चीज है जो कि चल रही है, और मुझे लगता है कि एक्टिंग अच्छी और बुरी से ज्यादा सच्ची और झूठी होती है। अगर सच्ची होगी तो वो एक बहुत ही खराब एक्टर जैसे हम बोलेंगे, कभी कभार वो भी सच्चा हो सकता है, और कभी कभार एक बहुत ही अच्छा एक्टर जैसे हम बोलेंगे वो भी झूठा हो सकता है। तो एक्टिंग या तो सच्ची लगेगी या आपको झूठी लगेगी। सच्ची लगेगी तो आप सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में आ जाएंगे, आप उस दुनिया में तैर जाएंगे और आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। अगर वो एक्टिंग झूठी होगी, वो आप तक ढंग से ट्रांसलेट नहीं हो रही है, तो आप कटा कटा महसूस करेंगे और आप उसे क्रिटिसाइज करेंगे, एंड बोथ द आर्ट फॉर्म्स इट हैपेंस दैट वे। खैर, ये थी Right, फिलॉसफी। right. Thank you for. सार्थक, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? क्या बोला? ये जो हमारा टॉपिक था, हाउ थिएटर इज नॉट जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टू सिनेमा एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड वन, इस पे आप बेसिकली मुझे अपने ऐसा व्यूज। लगता है कि अलग अलग क्या है कि अलग अलग लोग अलग अलग भाव से ये आर्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम थिएटर पहले सीखें, हम समझें कि एक्टिंग कैसे करनी है, थिएटर कैसे करना है, फिर हम इसको आगे लेके जाएं और ट्रांसपोर्ट करें इसको फिल्म्स में या कैमरा के मीडियम में। वो एक आउटलुक है। और एक आउटलुक है कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे एक्टिंग करनी है, अब मेरे को मीडियम आप बताओ कहाँ करनी है। तो ये अलग अलग तरीके से लोगों की सोच है इस बारे में, जो मुझे लगता है, और स्पेशली बॉम्बे ऐसे शहर में जहाँ पे मैं देखता हूँ कि काफी सारे ड्रामा स्कूल्स हैं। मैं खुद ड्रामा स्कूल से हूँ मुंबई में, जहाँ पे लोग आते हैं इसको ये मान के कि हम 1 साल की ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद अब हम फिल्म्स में या एड फिल्म्स ही करेंगे जिससे हम पैसे कमाएंगे, क्योंकि अब हम एक प्रोफेशनल एक्टर बन गए हैं। तो ये जो टर्म है ना, प्रोफेशनल एक्टर, ये थोड़ी मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है उस पर्सनली, बिकॉज ये आप एक एक्टर हैं, आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं आप करें। ये डिफरेंशिएट करना कि आप कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। एक घड़े बनाने वाले को घड़े बनाना आता है, वो बेचना कहाँ है, आप बताओ किस तरीके का घड़ा बनाना है, वो बना देगा, छोटा बड़ा ऊपर ऊंचा नीचा जैसे भी। तो वो हमारा उतना ही काम है, आप बताइए किस चीज के लिए बनाना है और कहाँ बनाना है, हम बना के देंगे, मैं ये मानता हूँ। बट ये स्टेपिंग स्टोन बना देना या ये टैग देना कई बार इसको बिलिटिल करना हो जाता है, और वो मुझे लगता है तौहीन है फिर आर्ट फॉर्म। वो एक अलग जगह पे हम जा रहे हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता। तो मैं इसको सिर्फ एक आर्ट फॉर्म की तरह देखता हूँ, इसको एक स्टेपिंग स्टोन या किस तरीके से मैं नहीं देखना चाहता। बट कई लोग जो देखना चाहते हैं उनके लिए काम करे अगर, तो वेलकम, जरूर देखें। नो, बिकॉज समटाइम्स बहुत लोगों को अलग अलग नोशंस होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बिल्कुल। अगर वर्किंग एक्टर्स जो फिल्म में काम कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली दे आर बोर्ड। या शायद 2 महीने शूटिंग नहीं है या 3 महीने हाँ शूटिंग नहीं है, कुछ आ नहीं रहा अच्छा काम, तो चलो यार थिएटर कर लेते हैं। अलग अलग नोशंस हैं, लाइक nobody would believe कि यार no, actually people can really be passionate about it. Two people can be working on a play for 2 years, अलग अलग जगह जाके उनके ग्रांट्स लाना, ऐसा एक टीम खड़ा करना, और एक नॉट ओनली अ टीम, आई थिंक अ वेरी वेरी एस्टीम्ड एंड प्रेस्टिजियस टीम with all amazing theater practitioners. तो ये only it can only happen through passion, the same passion जो like I think बॉम्बे में जरूरत है, जो फिल्मी दुनिया में हम लोग बहुत दुरुपयोग करते हैं इस वर्ड का, पैशन का, कि यार पैशन नहीं है तो सिनेमा नहीं है, और पैशन नहीं But है तो एक्टिंग नहीं है। सो हाँ, बोलिए, कौन बोल रहा है? Abhishek, I just want to add one thing. I think it या also ना हमने ना कोई ज्यादा ना प्लानिंग नहीं करी थी इन अ वेरी, क्या बोलूं, we were not very quote unquote चतुर अबाउट दिस। मेरा कहने का क्या मतलब है कि हमें लगा, हमने स्क्रिप्ट मिला है, हमने पहले ट्रांसलेट करी, हमें 6 7 8 महीने लग गए ट्रांसलेट करने में। ऐसा नहीं कि हम हर दिन ट्रांसलेट ही कर रहे थे,
We were managing other things. जब वक्त मिलता था 2 घंटे 3 घंटे मिलके, instead of just having a coffee, doing chilling, pilling, doing everything else that everyone does, we thought let's take time, and our intent was always correct with our project. So that's why, for some people who are, pretty much freebies, newbies like that, for other people to kind of join was also their how do I say, they saw the goodwill that we got was also because of our intent. I thought that everyone knew that we are not corrupt in any way, that people kept joining, more people joined because they thought, and we were also responding to the times. हमने क्यों ये नाटक उठाया? क्योंकि हमें कुछ कहने का मन था जो हम बस इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं डालना चाहते थे. We wanted to do a piece of art जो रिस्पॉन्ड करे और जो जाए. अब तो हमें बहुत खुशी मिली ऑनेस्टली ये करके. हमें कोई I'm also an actor. Why did I'm not quote unquote Shardul is, other people are performing. Other people are quote unquote still have that point of being seen. But what I got out of just working on this play for such a long time is no way going to help me quote unquote in a stepping stone as an actor. But I also see myself as an artist first. अब क्या हो गया, अब जब हम बचपन में, जैसे मैं बचपन 10 साल की उम्र से मेरे माँ बाप मुझे वर्कशॉप्स में भेज देते थे थिएटर की, हम वहां पर कोई नहीं होता था कौन एक्टर है, कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है. Even in college, there were no strict, everyone was doing everything. But the moment you're doing work in the film industry, you're supposed to be bracketed or compartmentalized into one thing. We were like, let's do everything. That's why Shardul had to produce, had to translate, had to act, had to sometimes be there doing 10 other things. Everyone had to do other things for it to happen. So, and the medium in itself, Abhishek, requires its own discipline and in its own rigor. Some of us are very used to doing one take. कि एक take हो गया, rehearsal हुई और वो छप गया. That's it. In theater, you have to come back. You have to come back, and also then keep yourself excited and interested. And each performance is different. One actor might have a great show one day, the other show might not be the same. You may fumble, you can't change, but you have to manage that. So that's a different thrill, absolutely, and a different medium. And that's why I think sometimes it becomes wrong to compare. But yes, for sure, like you can be discovered in so many places. If good people are watching you, you can be discovered. But I would like to believe that both of them are different mediums. And also, फिल्म वाले गाली देते हैं थिएटर एक्टिंग कर रहे हो, थिएटर वाले एक्टिंग देते हैं फिल्मी एक्टिंग कर रहे हो. तो एक मेरे को लगता है बस एक इट्स अ like I mean good, there's good acting and there's not good acting, and depending on the material that you're dealing with, you have to perform that well, and that's the game. एक आई थिंक सबसे बड़ा मुझे लगता है कंपैरिजन का कारण जो है ना, मुझे लगता है वो ये है कि it's the sustenance, the money, right? Like everybody would agree कि यार हाँ, हम चाहे कितना भी थिएटर करना चाहें और मतलब इंट्रीग और पैशन के साथ करना चाहें, but that cannot run our kitchen. And nobody is to be blamed, but probably the way it has been, like शायद हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलता हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से, जितना शायद एक तरह के नाटक को फलने फूलने के लिए या थिएटर कल्चर को फलने फूलने के लिए द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू रियली टेक इंटरेस्ट इन दैट, जो कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी दिखती है. प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो कोई भी वो प्ले बनाना चाहते हैं जो शायद अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में जाके वहां की ऑडियंस को हंसा दे. कहीं ना कहीं एक तरह की फिल्म होती है जो कि आप पर स्टेज पे परफॉर्म करके लेके जाते हो जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. देयर इज नो वॉइस इन दोस प्लेज. सो आई अंडरस्टैंड. सो नाउ in today's time, when of course like inflation is really high और रेंट्स बढ़ रहे हैं, अलग अलग खर्चे हैं, बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, आप लोग सब, and if I'm not wrong, most of you who are performing and who are part of this play are staying in Bombay, right? You are residing in the city. So how to sustain theater practice in today's time? I would just like to say one thing just to start. I think that you're right to say that there are a lot of state-funded spaces, like a developed country like Germany would have a repertory where actors would be paid by the state. And Correct. लोग repertories चलाते हैं internationally. यूरोप में और भी कई देश हैं जो चलाते हैं. जी. हमारे देश की जहाँ तक का सवाल है, क्या होता है, थिएटर इनहेरेंटली पॉलिटिकल होता है, कोई एपॉलिटिकल थिएटर नहीं होता. तो आप अगर देखेंगे हमारे देश में कोई क्लासिकल डांस फॉर्म्स होंगे
और कोई चीफ गेस्ट आ रहे होंगे, उनकी एंट्री पे आपको डांसेस दिखेंगे। हमारी सरकार डांस फॉर्म्स को, ट्रेडिशनल फॉर्म्स को करेगी प्रमोट, क्योंकि उसमें कोट, मैं ही नहीं कह रहा उसमें नैरेटिव नहीं है, कहानी नहीं है, बट वो अगेंस्ट द स्टेट नहीं है। आप किसी भी किस्म का थिएटर देखिए, वो किसी मार्जिनल चीज के बारे में बात कर रहा होगा, यू नो, somebody who's being oppressed, that's the kind of stories that, of course, आप कहेंगे कि हाँ एक किस्म के कमर्शियल नाटक होते हैं, उनकी हम बात अगर ना करें सिर्फ तो ये चीज एक लेवल पे हमें शुरू में पता थी और हम फिर निकले थे। और मेरे हिसाब से शेक्सपियर के टाइम से ना जजमान के थ्रू थिएटर होता है। जजमान, इफ पीपल अंडरस्टैंड, या तो पेट्रन्स के थ्रू होता है। शेक्सपियर को भी किंग पैसा देता था, फिर थिएटर हो पाता था। मुझे और शार्दुल को कोई शर्म नहीं थी किसी के पास भी जाने के लिए कि हम एक काम कर रहे हैं। हमने प्रॉपर प्रपोजल्स बनाए थे, हमने प्रॉपर फंडर्स थे, उनको अप्रोच किया था। And also, I think reputation and respect of the work that you've been doing. Like there were some people that have known me since I was really young. They were willing to support. They're saying you're doing something. We're sure that तुम कहीं पैसे इधर उधर नहीं कर रहे होगे. You must be putting it there. Also, people who work with you then, because however much you pay them, if you tell people कि आपको एक हफ्ता रेजिडेंसी करनी है, 2 महीना रिहर्सल करना है, they're investing their time. It's an opportunity cost involved. Not everyone gets to do the best role in everything. So we've had support from everybody that way. So long story short, I'd say that for sustainable practice, I'd like to also say that there are some people who are surviving even in Bombay just through theatre. There is someone called Jyoti Dogra who does brilliant work, but she does solo performances. So she's a very small team, 4-member team that she can travel and tour with as well. For example, for Avalanche 2, we have to have other sustainable models to be able to travel with it. तो मेरे को लगता है अभिषेक कि बहुत सारे avenues हैं अभी थिएटर कर पाने के. There are smaller spaces, for example, in Aram Nagar, 4 people can get together, make some work, pick up a good text from what Shardul was also mentioning, and do a performance. It's not going to take away, it might not make you money, but it might not, you might not lose money. You know what I mean? That Shardul and I decided कि हम अपना पैसा नहीं जलाएंगे करने में, हम कमा नहीं रहे हैं, तो that is the least that you'd be doing. And honestly, that's also the state of theatre in most parts of the world. Like हम कुमुद भाई से भी मिले थे, तो कहते हैं हमने भी 1 रुपया नहीं कमाया थिएटर करते हो, कितना थिएटर करते हैं, कितना shows करते हैं. तो that cannot be the intention, and that's the real picture we want to give everyone. That, you know, it's not that you're right, you'll not be able to earn your क्या बोलूं, you might not be able to run your kitchen. Yeah. शार्दुल, इसमें एक और चीज मुझे ये कहनी कि जैसे भी गंधर्व कह रहा था कि हमने एक रिटन प्रपोजल बनाया, हमने एक सिस्टमैटिक तरीके से उस डॉक्यूमेंट को बनाया, तो काफी लोग आते हैं पूछने के लिए यार हम पैसे कैसे ढूंढे. तो पर मैं पूछता हूँ बार बार कि अगर मान लीजिए आप मेरे पास आते कहने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए ये करने के लिए, मैं आपकी तैयारी देखूंगा ना कि आपका विजन क्या है, आपने कोशिश कितनी की है. हम जिस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज ये है कि अभी एवेन्यूज में लोग बहुत सारी चीजें आई थिंक टैप नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक कॉर्पोरेट सीएसआर होता है जिसमें कि बहुत सारे सीएसआर हैं जो कि सिर्फ ऐसे ही है कि उनको देना ही है, उनको उतना खत्म करना है 1 साल में. उस सीएसआर में लोग टैप नहीं करते हैं क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है. आपको प्ले का प्रपोजल, साइनॉप्सिस, डायरेक्टर्स नोट, फॉर्म, उसका ग्रामर, ये सब चीजें आपको लिखित रूप से आपको वो पेपर पे डालनी पड़ती हैं. तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑफ कोर्स स्टेट फंडेड नहीं है. अब उससे अगर आगे हम सोचें तो ऐसी प्राइवेट फंडिंग की बात करें, प्राइवेट फंडिंग है जिसमें कि नहीं सोची जा रही है. दूसरी बात आपको मैं एक बड़ा फनी क्या मेरे लिए बहुत हार्टनिंग इंस्टेंस है. एवलांच करते हुए हम लोग सेरेंडिपिटी के थ्रू गोवा में ओपन कर रहे थे. 6 शोज थे हमारे. 5वां शो जिस दिन था वो आई थिंक 21 दिसंबर या 22 दिसंबर का दिन था. उसी दिन तो हम एक क्लोज डाउन गैलरी में परफॉर्म कर रहे थे. उसी गैलरी के पास में आईनॉक्स था, पीवीआर आईनॉक्स जो पंजिम में है. वहां पे उस दिन डंकी रिलीज हो रही थी. तो हमारा शो खत्म हुआ 10 बजे और हम 11 बजे के शो में, डंकी के फर्स्ट डे रात के शो में, हाँ, तो हम लोग वी जस्ट वॉक्ड इनटू पीवीआर आईनॉक्स एंड वी वॉच्ड इट एंड वी केम आउट. एंड व्हाट आई थॉट वाज हाउ ब्यूटिफुल इज दिस दैट दिस मैन व्हेन ही हैज दिस ह्यूज रिलीज,
Na he went to the premiere. Na he was there giving all the interviews. He was performing in Goa. Did he lose anything? I would want to believe that he gained. So so वो जो आपका जो पिछला सवाल था, मैं विक्रम के बारे में वो बात कह रहा था कि ये चीज एक के बाद एक हुई, और एक हाउसफुल शो करके विक्रम निकले थे, एक और हाउसफुल शो में घुसे। दोनों में वाह, दोनों दो में अलग अलग उनका मीडियम। वाह। मीडियम्स में। और डंकी तो मतलब इतनी बड़ी रिलीज थी, इतना बड़ा कमर्शियल रिलीज था। और बात रही पैसे की, अभिषेक, अगेन मैं, आपके जो दोस्त भी हैं, देवशीष या प्रतीक, ये लोग सब भी दोस्त हैं आपके, तो फिल्मों में भी हालत तो वो है ना कि अगर आप अपने अपने हिसाब की फिल्में बनाना चाहते हैं तो आप पहली फिल्म बना लेते हैं, दूसरी फिल्म तीसरी फिल्म के लिए आप पैसे ही ढूंढते रहते हैं, और हम लोग उसी किस्म की फिल्म करते हैं जहां पे कि वो पैसे ढूंढे जाते हैं, लेकिन फिर भी बनाया जा रहा है और उनके भी घर चल रहे हैं। अब रही बात थिएटर करके घर चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये मैं कहीं स्टैट पढ़ रहा था कि बंबई में सिर्फ 2% एक्टर हैं जो कि फिल्में करके भी अपना घर चला रहे हैं, पर उससे बहुत ज्यादा है एक्टर। तो अगर घर चलाना अगर सिर्फ मुद्दा है, तो लोग अंग्रेजी की क्लासेस देके भी घर चला रहे हैं। तो घर तो चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप को एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी तो देखना पड़ेगा ना। आज के समय में आप एक्टर थोड़े ना, आप एंटरप्रेन्योर हैं। यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू फाइंड वेज। थिएटर आपको पैसे नहीं देगा, पर अगर आप थिएटर नहीं करेंगे तो आपका नुकसान जरूर होगा। हम्म। हम्म। And क्या, like Vikram, Shweta, Siddharth, Sarthak, and Anamika, like, did you expect any kind of payment? Like, I mean, that when you signed up for it, कहीं ऐसा लगा कि हाँ अच्छा कितने पैसे मिलेंगे, क्या, हाँ क्या होगा? एंड गंधर्व एंड शार्दुल, आप लोगों की बातों सुन के मुझे ये लग रहा है कि आपने डेफिनेटली पूरे टीम को पे किया, एंड with every show I'm sure, like, you know, you're paying something. But was there any expectation? Like, because obviously, like, no matter if you're doing a Dave Makija's film or Pratik Vath's film or Chaitanya Taman's film, I think there's always this one, एक होप रहती है कि फिल्म कर रहे हैं तो यार पैसा मिलेगा, थोड़ा तो मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा मिलेगा। बट थिएटर में मैंने बहुत बार देखा है कि देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस, एंड समटाइम्स पीपल आर विलिंग टू डू इट without any money. Was there a thought and was there an expectation? नो, यस, इन द बिगनिंग इट वाजंट देयर, बट वो शुरुआत में ही पहली मीटिंग के बाद ही बता दिया कि आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दीस गाइज आर एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट व्हाट दे आर डूइंग एंड दे वर वेरी प्लान्ड अबाउट इट। बल्कि कभी कभार ऐसा भी लगा कि यार कहीं तुम लोग अपनी जेब से तो नहीं कर रहे हो। अगर इफ यू गाइज आर नॉट अर्निंग, वी ऑल आर डूइंग इट, मतलब वो तो सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। तो तुम भाई अगर ऐसा कर रहे हो तो So मत that's करो। what, no, that's a myth I was talking about, that, you know, whenever we associate ourselves with theater, especially when we are working in the industry, and we are like in Bombay, we are trying to like make our ends meet, we are hustling, make एक हमेशा एक डर रहता है कि यार थिएटर करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। बट अगर स्मार्टली, अगर जैसे कि शार्दुल ने बोला कि आजकल का टाइम ही ये है that you have to don many hats. That's why I started the conversation with, you know, how somebody's doing makeup and, you know, acting, somebody's doing production and acting, somebody's doing the makeup for other actors and acting. I think आजकल की रिक्वायरमेंट ही ये है कि आप सिर्फ एक चीज पे काम नहीं कर सकते। मल्टीपल, जैसे कहते हैं, मल्टीपल टास्किंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है जस्ट टू सर्वाइव इन जनरली इन लाइफ, क्योंकि एक जॉब से शायद वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। और मुझे लगता है अभिषेक भाई, आई थिंक द वियर्ड थिंग इज दैट, देखो हर जगह पे ना देयर आर पैटर्न्स, मतलब देयर आर सेट थिंग्स दैट पीपल वांट टू फॉलो। जैसे कि अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आप ग्रेजुएशन करिए, फिर आप एमबीबीएस करिए, फिर आप एमडी करिए, फिर आपको जिस फील्ड में जो स्पेशलाइजेशन करनी है वो करिए और आप डॉक्टर बन जाएंगे। अब आप प्रैक्टिस करिए। ये एक्टर बनने के लिए ना कुछ है नहीं ऐसा कि आप ये करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो। तो ये ना सब चलता है कि हमने जो सुना उस पे चलता है, या इसने ये किया। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अभिषेक भाई को अब पता है अपने, इन्होंने पहले क्या क्या किया, कि इन्होंने पहले नाटक करे कितने साल, उसके बाद इन्होंने, उनकी क्या जर्नी रही। तो इनकी एक अलग जर्नी है, और इनके साथ बाकी जो 10 लोग हैं सेम उम्र के, उनकी एक अलग जर्नी है, जो सब भी एक्टर्स हैं। लोग ट्राई करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना इसको लगा दें, इसीलिए ऐसी चीजें आती हैं जैसे कि ये स्टेपिंग स्टोन है क्या थिएटर। वो तब है जब आपकी वो लैडर में नंबर 2 पे है, तो वो स्टेपिंग स्टोन बनेगा ही, आपने खुद बनाया उसको।
उसी तरीके से कि ये वाली चीज कि अच्छा इससे पैसे कैसे कमाए जाए, तो ये सवाल आते हैं जब उन लोगों के तब आते हैं जब हम उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व जब होंगे ना, तो अपने आप पैसा भी आता है। वो वही वाली बात है, इफ यू आर देयर एवेन्यूज विल कम अप, इफ यू आर देयर यू आर डूइंग समथिंग, यू आर कनेक्टिंग विद पीपल, आप नाटक कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ से आप जुड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे बढ़ने का एक यही तरीका है कि आप यू बी देयर एंड यू डू स्टफ। तो पैसे की एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, लेकिन आएंगे पैसे जब आप कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे, तो पैसा आ जाएगा। लेकिन पैसा के लिए वो काम कर रहे हैं तो फिर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा भी बड़ा क्लियर था कि अगर हमें पैसा मिल रहा है, अगर गैदर्ड को पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा सबके लिए ही है, वो नाटक में ही खर्च हो रहा है, वो गैदर्ड के कोई अकाउंट है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस तरीके से ही काम होगा। तो वो आंसरिंग दैट क्वेश्चन कि कैसे पैसे की एक्सपेक्टेशन, तो हमें क्लियर था कि पैसे किस चीज के लिए हम वो कर रहे हैं, हम जो अपना टाइम और ये कर रहे हैं, ये हम करना चाह रहे हैं, ये हम टाइम देना चाह रहे हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। मतलब मेरे लिए, मैंने गंधर्व का, मेरे को बस पता लगा कि गंधर्व एक एक्टर ढूंढ रहा है, तो मैंने कहा गंधर्व मैं करूंगा एक्टिंग। गंधर्व ने बोला कि नहीं नहीं ये तू प्रोडक्शन करेगा। मैंने कहा हाँ प्रोडक्शन भी करूंगा, बता। तो आपको बस करना है तो आप कर लेंगे, फिर पैसे की बात तो बाद में आती है। अच्छा इस खुद ही पता चलता है सामने से, अच्छा पैसे भी मिलेंगे, वेरी गुड, पैसे भी दोगे तो काम भी करेंगे, बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है। तो बस करना है, वो उस जगह पे रहना है, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होना है, वो आई थिंक प्रायोरिटी है जहां से हमारे हैं। मुझे एक चीज और छोटी सी लगती है Yes, अभिषेक। yes, हाँ, yes. सॉरी बीच में पॉइंट। अभिषेक वो सुना ना, ये तुम्हें थोड़ा सा पॉज आ गया मेरे अंदर। बोलिए। खैर, तो एक ये है कि टाइम्स आर चेंजिंग, ऑडियंस आर चेंजिंग। जैसे जेनजी आया है, जनरेशन के क्या मटेरियल वो देखना चाह, सिनेमा में भी, थिएटर में भी there are a lot of experiments which are going on with the kind of stories, with the kind of material which we are churning, and कि ऑडियंस तक क्या पहुंचे, क्या चीज देखना चाहते हैं, क्या चीजें सोशली पॉलिटिकली रेलेवेंस रखती हैं जो कि उनको अफेक्ट करती हैं। बहुत सारा जेनजी है जो कि इंडियन सिनेमा देखता ही नहीं है, कमर्शियल सिनेमा से बहुत कट चुका है, उनका पूरा अलग ही फॉर्मेट है। जैसे अभी भी आई वाज वाचिंग एलएसडी, तो एलएसडी का जो थर्ड पोर्शन था जिसमें वो गेमर्स के बारे में बात की है, मैं अपनी जनरेशन को तो टोटली कट ऑफ रखता हूँ उससे। मतलब वो जिस तरीके से गेम्स पे बैठ के रिव्यूज करना और उसके वीडियोस बना के दिखाना, एंड पीपल आर वाचिंग दैट फॉर घंटों घंटों, मतलब बैठ के आप ये देखते रहते हैं, तो वो एसोसिएशन अंदर से कहीं है ही नहीं, बिकॉज वो जनरेशन इतनी फास्ट चेंज हुई है। तो इस दौरान ना बहुत कुछ अनटैप्ड है, मुझे ऐसा लगता है। एंड थिएटर का बिजनेस भी अभी जो जिस तरीके से थिएटर भी ग्रो कर रहा है, वो पहले बीच में एक माहौल आया था जहां पर ये थिएटर सिर्फ एक नीश ऑडियंस के लिए बन गया था, बट वो माहौल अब नहीं है। अब थिएटर देखने के लिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस की भीड़ जमा होती है, ऑडियंस जाना चाहती है। बस यही है कि इसे एक मैसिव स्केल पे अभी नहीं किया जा रहा है। एक मैसिव स्केल पे अगर ये ऐसा, जैसे अब वो नमक खुला है, सॉरी एनएमएसीसी खुला है, तो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर भी खुला है। Correct, सो correct. दे आर थिंकिंग इन दी लाइंस, दे आर क्रिएटिंग थिएटर स्पेसेस। G5 है जहां पर हमारा शो है, वो भी रिसेंट स्पेस ही है। मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया, मैं पहली बार परफॉर्म करने जा रहा हूँ। पहले बॉम्बे का थिएटर स्पेस हमारे लिए या तो आपका टाटा वाला वो साउथ बॉम्बे होता था, या फिर हाँ। पृथ्वी होता था। एंड धीरे धीरे करके छोटी छोटी थिएटर स्पेसेस खुल रही हैं। पीपल आर ट्राइंग देयर हाथ पांव इधर उधर कि इस बिजनेस को किसी तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, इस जगह को एक्सप्लोर किया जाए। तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अभी है। और जिस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन में हम आते हैं, जैसे हमारे यहाँ मेट्रो अभी आ रही है बॉम्बे में, तो धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे करके डेवलप करते रहेंगे, हमारे लाइफस्टाइल चेंज होते रहेंगे। यूके में थिएटर सीन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Of course, it's like एंड huge. Yeah. आई थिंक इट इज, मतलब आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट फिल्म्स आर लाइक ऑन द मॉनेटरी Yeah. साइड। Yeah. So we might develop to that side. There is a lot of empty area which is there at this point of time. जैसे कि शार्दुल कह रहा था कि we need to think like entrepreneurs, and surely अगर हम entrepreneur के तौर पे सोचें तो हम शायद ये कर पाए।
हम शायद, हालांकि मैं ऐसे लोगों को और भी जानता हूँ जो थिएटर से सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे विकास बाहरी करके हमारा एक डायरेक्टर है। अब वो हम्म, धड़ाधड़ चर्न आउट करता है प्लेज, वो धड़ाधड़ स्टोरीज बनाते हैं। सम प्लेज आर वेरी गुड, सम प्लेज डू नॉट वर्क, बट ही इज कंटिन्यूअसली चर्निंग आउट प्लेज, अ प्रोडक्ट देन अ प्रोडक्ट देन अ प्रोडक्ट देन अ प्रोडक्ट। और वो अपने प्लेज में कुछ कुछ कहने की भी कोशिश करते रहते हैं, बट 10 में से एक प्ले या 2 प्ले अच्छे हो जाते हैं, बाकी नहीं होते हैं। बाकी उसी फॉर्मेट में है, टॉकी 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 टॉकी, कभी कभार कहीं की स्क्रिप्ट इतनी कमाल होती है, बट दैट गाय हैज बीन अर्निंग ओनली थ्रू थिएटर। और वो बॉम्बे में बैठ के थिएटर करता है, दिल्ली में जाके थिएटर करता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज ही एग्जिस्ट, बट हम्म। I think he still needs to. He is touching quality I at think quality. Manav Keeps Kaul been touching काफी quality. time तक I think he survived through theater, right? If I'm not wrong, Manav Kaul. Yes, Manav Yeah, Kaul, Salim Film Arif, में yeah, आने से पहले, yeah. yeah. बहुत सारे लोग। तो मेरे ख्याल से इसका एक अभी भी ऐसा कुछ बाकी है जहां पर शायद किसी कंपनी को या किसी को ना जुड़ के एक ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ऑडियंस है लोगों तक, पर लोगों को पता नहीं है। और आधे से ज्यादा मतलब आप फिल्मों में भी देखिए, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स किस तरह से आते हैं और किस वजह से आते हैं। काफी सारी फिल्में उस वजह से भी उस तरह की फिल्में बनती हैं, क्योंकि जैसे तो हम जैसा कि आपने कहा कि ऑडियंस ना, आई थिंक द मेन थिंग इज दैट द ऑडियंस इज ओपन, लाइक if our audience is going for live comedy shows, I mean यस for me they are equivalent to a mono act plays. Only thing is that they are more funny and probably, and they're not really your classic theater. It's like more about your own times. It's more relatable. तो अगर इस तरह के सिनेरियोज हैं जहां पे मैं जितना मैं जानता हूँ दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, इन सब शहरों में, मेट्रो सिटीज में तो एटलीस्ट लाइव सिंगल परफॉर्मेंसेस की बहुत बड़ी चलन है. So I'm sure theater also can find its way, and it has already find its way, like how you guys are doing it. I would call this a modern theater performance. Like I would call, and though मतलब हो सकता है आप लोग वही classical approach रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने ग्रुप बनाया, जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, the kind of money you guys have raised, this is clearly a sign of a new modern contemporary group, and it's great to see that. It's great to see that. Anamika, you have been acting in theaters, like आप बहुत सारे theater shows काफी सालों से कर रही हैं. Does it get tiring for you, like because you have, I think, more than anybody in this group, you are the one who is associated with theater for the longest time. Does it get tiring? कभी थकान होती है, कभी ऐसा लगता है कि यार नो नॉट एट ऑल, उसको थकान नहीं कहूंगी मैं, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ रेपेटरी कंपनी आल्सो फॉर लाइक 6 years. तो yes, क्या होता था, उसका फॉर्मेट ऐसा है कि साल में आप 4 नाटक करते हैं और आपको करने ही है, तो okay, तब उसको okay, थकान नहीं कहती थी। पर मैं अपने तरीके से उसको कहूँ तो शायद एज एन एक्टर भी अपने आप को आपको ब्रेक देना होता है, ताकि आप अपने अंदर दोबारा कुछ ढूंढ पाए। आप जी, ज्यादा खाएंगे तो आपको लूज मोशन ही होगा, तो उतना ही खाना चाहिए जितनी भूख हो। सो जी. एज एन एक्टर भी आप उतना ही काम कर सकते हो या कर पाते हो जिससे आप क्रिएटिवली कुछ दे पाए। अदरवाइज आप शायद फिर कुछ भी नहीं कर रहे होते और सब कुछ वर्क नहीं करता है, ना आपके लिए ना नाटक के लिए। And Shweta, would you do costumes for films if you've ever given a chance? Like, you did it for a play. लेकिन अगर आपको कल को फिल्म के लिए ऑप्शन मिलता है, या आपने कभी कोशिश नहीं की फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम्स करने का? थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, but I will give it a thought. I am Because I'm just curious, because अगर आप कर सकती हैं और आपने एक प्ले के लिए किया, तो फिल्मों के लिए कभी कभी ख्याल नहीं आया? This is the first time somebody's asked you this. actually I'll tell you why मैं क्यों कह रही हूँ मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है. When I'd been doing it हमेशा से ना, my table was really free. I liked some color, I liked some piece, that there was a design that came into my mind. I'm not trained in it. It was in that moment a creative feeling sense which I converted into a piece. Now I had designed a couple of things for a couple of friends. Also for Shardul, I designed something when he was going for the Busan Film Festival. I really think किसी और का interest बहुत आगे रखना पड़ता है किसी और के लिए काम करने के लिए. And that's when I realized कि मुझे सिर्फ बनाना नहीं पसंद, मुझे जो मुझे पसंद है वो बनाना पसंद है. Which made me feel that I think I'm going to open a brand and put out what I make. And if there's a world who likes it, wants to take it, please take it.
That's the feeling I have as of now. Is why I said I'll give it a thought. Mushkil hai. Because committing to a film or a project is really committing to another person's vision as well. Which with costumes for now, I'm figuring where I stand. Yeah, and trust me, there are many people who had zero training before they joined costumes in our films also. And I feel it's a very interesting department. Only thing is, and sometimes it lacks creativity. So, and that's just a uh, point of conversation. So Now, coming Abhishek, to the sorry, yes, we have over 17 questions. we Uh, can only take top three questions. We don't have time because we have one more yes, very important question to ask right. on So the I program. will just to request to all the members who put in questions, I am going to club it into three main questions because आज के टॉक का पूरा जो रिकॉर्डिंग है वो हम YouTube पे डालेंगे तो आप सुन सकते हैं तो काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो गए सो वेरी और हैप्पी मुझे दैट कि सिर्फ एग्जैक्टली मुझे तो ये लग रहा है कि पूरा जी हमने 360 डिग्री कवर कर लिया और बाकी ये जी लास्ट सवाल से बाकी बाकी जी बहुत सारे सवाल जो है उनके मन में जो चल रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या ये एक बहुत हमेशा से पूछा गया है हर बार इस बारे में बात हुई है डज थिएटर रियली हेल्प brush up your craft skill in acting writing I would say production I would say costumes makeup whatever क्या theater आप लोग when you want to when you go back to it Vikram when you went back to it uh, did you think कि okay let's go and brush my skills is that the first thought शार्दुल गंधर्व तुम लोगों के लिए भी क्या ये था कि चलो एक्सप्लोर करते हैं देखते हैं कुछ नया अपने अंदर के आर्टिस्ट में क्या नया ढूंढ सकते हैं for Shweta and Anamika when you signed up for this did that thought come कि okay like we have been doing work in front of camera we have been doing work with big huge productions big actors and collaborators but वो एक लालच थी क्या या वो कभी ये सवाल आया नहीं एंड जस्ट जनरली एक जेनरिक अप्रोच था Vikram bhai, do you want to answer first? नहीं तुम बोलो. Actually, Abhishek, क्या होता है मेरे को लगता है in film setups and other places, when you just acting, na, you're a cog in the wheel. And here, when you're initiating something from the very outset, you're calling a lot of the shots. So the responsibility and the agency, अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल करूँ, choices का बहुत हमारे पास एक हमारे पास उसकी responsibility भी होती है and opportunity भी होती है. Then I think Shardul and I personally quite enjoyed doing that. And the kind of stakes that were involved, बहुत ज़्यादा स्केल था नाटक में हमें बहुत अलग अलग लोगों के साथ कोलैबोरेट करने को मिला म्यूजिक के तौर पे लाइक आई हैड नेवर कोलैबोरेटेड विद एन आर्किटेक्ट तो मेरे को लगता है जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ सिर्फ मैं एक डायरेक्टर का फिल्म मीडियम में विजन का एक पार्ट होता हूँ मेरे को लगता है कई बार एक्टर्स स्पेशली इन द फिल्म मीडियम समटाइम्स अपने आप को ओवर इम्पोर्टेंस भी देते हैं उस मीडियम में बट थिएटर में बहुत सेंट्रल होते हैं वो क्योंकि दे आर ड्राइविंग अ लॉट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग and I think that this opportunity one relished ki bhai at the stakes involved the scale involved because of course इतना भी बड़ा स्केल नहीं है हम बात करें शायद अराउंड 15 लाख रुपीस की जो सिग्निफिकेंट अमाउंट है थिएटर में बट फिल्म के टर्म्स में कोई खास सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है तो उसमें लाइक यू नो दैट आई रियली फेल्ट दैट आई रियली रेलिश दैट अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर अगेन and of course matlab, there was so much to do create again so that kind of an opportunity was there and I think the second part of the question I'd like Shardul and maybe other people also to respond to that how is it honing the craft or changing the craft how does it go back I think I got to do a lot more things than I was doing when I was just acting for film so that is something that I really loved yeah Vikram, you were yeah saying, no? you're Yes. muted So I was just saying that कि हाँ थोड़ा सा theater करते समय because it is live and each and every performance is different and you're listening to what is happening and उस माहौल में जाकर आपको करना तो वही है जो लिखा हुआ है लेकिन it's like you have a beginning you have an end and you cannot call cut in between so अब वो जिस डिजाइन की तरफ बढ़ गया है उस डिजाइन की तरफ ही आपको उसको आगे बढ़ाना है. It should look like a continuation of the same thing and still reach the end point.
So in each performance, it happens differently. And suppose मेरे साथ हुआ था, in fact, last performance में, there's an activity which I forgot. So it is live. You have to improvise. अगर वो एक्टिविटी आप भूले हो, आप आगे जाते हो और आगे जाके वो एक्टिविटी फिर करते हो, सारा सिनेरियो हिल जाता है। और वो एक्टिविटी हिलने की वजह से फिर जो क्रिएट हुआ है, उस क्रिएशन को भी आपको साथ में लेके चलना है। तो थिएटर की एक्सप्लोरेशन में जो मजा है, वो तो कमाल है। फिल्म ज्यादातर मुझे प्लानिंग वाला मेथड लगता है कि यू प्लान योर ईच एंड एवरीथिंग, और उस प्लानिंग के हिसाब से आप चीजों को लाइव करने की कोशिश करते And हो। I'm very sorry to cut you, Vikram bhai. There's an architect who designed for us. He's also in the panel. So maybe Oh, what he hello. also got doing theatre. His name is Madhav Raman. He's quite a like a reputed architect. So he designed the sets for us. Yeah, Madhav's here. Hi, Madhav. Hi, Madhav. Hello, Madhav. I think you'll have to unmute him, Reena. Yeah. Yeah. Hi. Now I'm unmuted. Hi, Hi, Madhav. Hi, Abhishek. Was this the first Good time to be that here. Yeah, I mean, so good to have you here. In fact, I asked Gandharv कि किसने sets किसने बनाए. मुझे पूछना था आपसे, like, have you ever like been a part of a play or any kind of performance Yeah, performing arts? absolutely. I mean, the fact is, I did a lot of. हमारा कॉलेज एनएसडी के बहुत नजदीक होता था, आर्किटेक्चर कॉलेज. Okay. So we had a theatre society in college, and then subsequently, for a couple of years, a bunch of us who graduated from that architecture college decided to do theatre professionally. But that, I think there's been enough discussion about the financial caprice that is there in theatre. So it dropped out. So literally 20 years back is the last time I was involved in a production. So this was a Wow. great opportunity for me to get back to something that I really love. And, it's a great way to reconnect with the kinds of things that I'd almost forgotten. And I think you mentioned muscle memory a little earlier. Yeah. So a lot of the sort of excitement of being part of a theatrical production kind of came back. It was great. I mean, this is such a spectacular group. I mean, each one is a celebrity in his own right, but in the moment of that theater, all of us were like in it together. And आपने कहा मैंने सेट बनाया नहीं है. सेट उज्जवल और अशोक और बहुत सारे लोगों ने बनाया इकट्ठे. But I'm really grateful for this opportunity. And how did you manage your client calls between, like, जब आप because I know that architects are always bothered about their client calls. Yeah, तो वहाँ के चिक-चिक से इसमें- I'm getting back to Delhi from catching a flight to get back to Delhi now. No, but like these guys were super professional. They were very organized, and it didn't stress me out at all. I mean, it just went with the flow. I had a great time in Goa with these guys putting the production together. So that it's not such a challenge. I think Vikram said it earlier. If there is reason to do something, you'll always make time. And would you do it again? Because I mean, Oh, as absolutely. Gandharv said, you are a successful architect. You're doing good in your business. Acha, you will like. Yeah. That's interesting. No, that's 100%, interesting. without a doubt. I mean, it's so my partner and I both were involved in theater in college. One of the reasons the partnership grew was because of theater and the friendship and the bonding that happens on stage. So in fact, there was a brief moment where I think my partner was a little disappointed that I was the guy taking the lead and not him. He got to pitch in a little bit because I think for the second production, I wasn't available. So he kind of helped out. So yeah. Okay. Actually, yeah, whenever this happens, when people from different work life they get together, मेरे लिए ना theater सिर्फ acting और art से भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है. Like, it just becomes a more like having a community and Yes. creating something. अब पता नहीं है कि वो नाटक कैसा होगा, sets कैसे बनेंगे, costume कैसा आएगा, makeup ठीक होगा कि नहीं होगा. लेकिन बस करना है और लोग जैसे चार दोस्त मिलके कुछ कर रहे होते हैं. I think it's almost like that, and that is the real fun of actually collaborating and doing something apart from, of course, an intriguing script, which really compels you to do something. It's beautiful. I hope I can watch your play soon. यार मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है अभी देखने की. आप 7 से 10 मई नहीं हो?
आप नहीं, मैं नहीं बीर जा रहा हूँ। I'm unfortunately going to the hills. मैं काफी टाइम से गया नहीं हूँ, तो मैं वहां जा रहा हूँ। बट मैं So देखूंगा भाई अभिषेक, मस्त। आपकी बात पे एक चीज ऐड ऑन करना था, क्योंकि कई बार ये बात पूछी जाती है कि अच्छा थिएटर करना है, ये करना है। एक एग्जाम्पल है बस, सिर्फ सोवियत रशिया में नहीं, इंडिया में ही हर मोहल्ले में एक समय तक 1950 या 1960 तक हर मोहल्ले में एक टोली होती थी, नाटक की बिल्कुल टोली, जो कम्युनिटी का आइडिया होता था, जो आज भी बंबई में जो युवा सेंटर्स जो हैं, वहां पे आज भी मराठी थिएटर इसी तरीके से किया जाता है, एज अ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो आपको भांड हुआ करते थे, भांड। भांड भी होते थे और रामलीला की जाती थी हर हर मोहल्ले में। तो वो लोग, कोई कोई खेती करता है, कोई बैंक में काम करता है, सब लोग मिल के फिर वो करते थे। तो ये थिएटर कभी भी हमारे यहाँ प्रोफेशन की तरह हमेशा नहीं समझा गया है, उसे एज पार्ट ऑफ लाइफ माना गया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मतलब मैं जब देखता हूँ कि बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे बिल्डिंग के बाद दूसरी एक बिल्डिंग है जो काफी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना पसंद करती है, तो डीजे चलाकर मतलब गाने बजाने से अच्छा है कि अगर शायद वो लोग कोई नाटक वाटक कर ले तो हम लोग ही जाके एज एन ऑडियंस वी कैन वॉच दैट। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ अ ट्रेंड, लाइक हाउ यू सेड दैट वी हैव टू फाइंड न्यू वेज ऑफ डूइंग इट, लाइक कि हम गणपति फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, हम एक क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स वी आर लाइक we love music and we love to dance, but can we create also these small place for the building people to watch? तो इस तरह की चीजें अपने आसपास भी अगर हम लोग शुरू कर दें तो थोड़ा करके आई थिंक we'll grow culturally, at least in our whatever space, how much ever we can do. Anybody else, किसी और को कुछ बोलना था इस पॉइंट पे, like about honing your skills and brushing up your craft? Like for me, Shweta, you want to say something? I was thinking कि मतलब I think I don't want to shy away from accepting it is also brushing up your craft. थिएटर नहीं, सिर्फ मुझे लगता है एक्टिंग इज अ प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म। और जैसे शार्दुल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम थिएटर नहीं कर रहे तो बॉम्बे में 2% एक्टर है जो फिल्मों से भी अपना घर चला रहे हैं। हम यहाँ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स अभी हाथ में पड़े हैं। और तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट अच्छा काम मिल रहा है तो करो, तुम्हें पसंद है, तुम क्रिएटिव इंसान हो, तुम ये चीजें करते हो। आई थिंक माय big takeaway from Avalanche also, I read the script, I loved the character of the young woman, the space, the scene, जिस हिसाब से आप ऊंची बात नहीं कर सकते। 12 लोग हैं, 12 लोग एक किस्म से रह रहे हैं कि हम ऊंचा नहीं बोल सकते। This woman is pregnant, she is in labor and she cannot speak out. And it was a wonderful situation to play. It really attracted me to it. So one of the reasons that I was like, मुझे ये करना है। Yeah. And it also provides, actually, जो skills की बात हो रही है अभिषेक, it provides skills to quote unquote fresher, newer actors who still haven't gotten many opportunities to pick up a text and go ahead and do scenes and also perform it for people. क्योंकि हम opportunities ढूंढते रहते हैं only at our auditions की ये audition नहीं मिला, वो नहीं मिला, and I think here is an opportunity. And हाँ, आप ये ना aim करें कि आपको पृथ्वी में ही perform करना है, या पृथ्वी क्वाइट ऑनेस्टली हमें भी नहीं मिला, हमने अप्लाई किया था और हमें तक पृथ्वी नहीं मिला, बट G5A ने हमें लिस्ट होती है। हाँ 5 दिन हमें दिए, तो वी कुंट क्रिप की नहीं मिला। लुक आउट फॉर स्पेसेस परफॉर्म। इनफैक्ट आजकल शारिब हाशमी और एक सनी हिंदुजा है, they're working actors doing pretty well for themselves and they're planning to make a play together. Why are they doing it? So I mean it's just to give yourself a new challenge and take the leap of faith. तो लोग कर रहे हैं और करते हैं, और मेरे को लगता है लोगों के कारण करने के अलग अलग हो सकते हैं, बट आई मीन टू ईच देयर ओन, क्योंकि ज्यादा मुश्किल बना तो लेते हैं लोग, परफॉर्म का करे होता है। और मेरे को लगता है जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ही परफॉर्म करना है, जहां मौका मिल रहा है और आप कम बजट्स में करें, अगर आपके पास नहीं है पैसा, कम चीजों में करें और इमेजिनेटिवली करें। मौके तो हैं सबके पास, तो रोकने की कोई जरूरत नहीं है खुद को। हाँ मतलब you don't need to launch your play, you just need to perform Yeah. your play. That's Yeah. the whole idea. Cool. I think we have covered up most of the topics. I think Dina, you can open the. So, Abhishek, I have tried my best
to shrink it to 3, I think it'll be about 5 max. But just to tell you, there are few members who just want to talk. They really want to talk over here. There's one person who's written to me at least 11 times in the chat. His name is Vineet. And Vineet would like to just give a personal message to you. Is that okay Yeah, with you? Vineet. Yeah, but not to me. I hope it's related to the It topic is and just the. to say hi Yeah. and to kind of say hello to the whole team. Yes, So, yes, for sure. and he also has a question. So, Yeah. just Okay, Vineet. hi, Vineet. Yes, you can put out your question. Yeah, Vineet. Hello, Abhishek sir. Hello all. Hi, Vineet. How are you? Hello. I just started a startup for ad making, and my main focus is for NRI because Ad making मतलब हमारे पास बहुत ad की NRIs company. हैं जो सर्विसेज विनीत ad की कंपनी है. Sorry विनीत, ad कॉमर्शियल making का एड्स मतलब क्या एक्चुअली हुआ? अच्छा, कमर्शियल कॉमर्शियल बनाते हो एड्स आप. टीवी बनाते हो. कॉमर्शियल अच्छा यस अच्छा, ठीक है तो ठीक है. हाँ. अभी जो मेरे कस्टमर्स जो मेरी प्लानिंग है बिकॉज इट जस्ट इन स्टार्टिंग स्टेज Sorry, तो अभी Vineet, is this question regarded to theater? यस इट्स रिगार्डिंग एक्टिंग एक्चुअली हाँ फॉर हाँ, बोलिए बोलिए. या तो जो एनआरआईज हैं वो सर्विसेज देते हैं कुछ बट उनके जो एड मेकिंग है वो फॉरेन कंट्रीज में बहुत कॉस्टली पड़ती है तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ मतलब एड मेकिंग और थिएटर टाइप ऑफ थिंग देयर आर मेनी एनआरआईज who are interested in acting but they are not getting the right platform so how can we engage them in Indian theaters actually बहुत सारे एनआरआई हैं जो नाटक करना चाहते हैं acting इंडिया करना में. चाहते हैं yes but they are not एक्टिंग getting करना चाहते platform हैं इंडिया में. India or online anything No, I think this is not a relevant question, Vineet, for this topic because I think ये आप मतलब for me I don't know NRIs तो they are I'm sure that वो देश में नहीं है, अपने देश में है. जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इसका पूरा सार यही निकलता है कि जहां से भी हो सके right जितने जैसे भी हो सके अपनी कम्युनिटी बनाए और आपस में कोशिश करें कि मतलब कोलैबोरेट करके कोई नाटक बनाए या सीखें या आप आसपास में उनके जो भी थिएटर ग्रुप्स हैं या थिएटर क्लासेस हैं या स्कूल्स हैं वहां जाकर सीखें. ये तो बहुत ही बेसिक जेनरिक चीज है. तो या दैट यू कैन सजेस्ट. ओके. Okay. okay Thank you, Vineet. एंड Thank you. सिनेइंफो को फॉलो करते रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और क्लासेस आते हैं. तो यू कैन सजेस्ट योर एनआरआई फ्रेंड्स दैट. ओके. So incidentally, Abhishek, we do have Vika who is from Canada and he's put in his question over here. Vika's Yes. question is about Vika Ahuja. Listening to conversation about theater and cinema, the analogy that came to mind was hockey or cricket, that the national sport is hockey, but money and audience pulled in is with cricket. Given that, what do you see as the future of theater in Mumbai? Do you think it can grow to the level of theater in UK? ये विका का question है and he's based out of Toronto. Yeah, we just had a word about it. Anybody from the I gathered? I would like to respond to that. Sometimes what happens is there are some traditional forms in our country as well. For example, there's a Kudiyattam form. It's the oldest existing acting tradition. It's based in Kerala right now. So what's happening is that sometimes people at the end try to kind of pump in. जैसे कोई हॉस्पिटल में होता है तो उसको एंड में आप ऑक्सीजन देते हैं, वेंटिलेटर पे रख देते हैं. मेरे को लगता है थिएटर भी आज के समय पे अभी आईपीएल के साथ compete कर रहा है, वेब शोज के साथ compete कर रहा है, रील्स के साथ compete कर रहा है, लोगों की अटेंशन स्पैन्स जा रहे हैं. दैट्स वेरी नेचुरल. सो थिएटर को अगर अपने we have to rediscover ways and reimagine ways to make the plays. What plays we're doing एकदम comedy एक किस्म के नाटक होते हैं that I mean it's up to us to make something as good that people come to the theater to watch it. And that's why, for example, in a play like ours as well, we're not doing a play for 400 people. We've always had a very limited audience who have the kind of interest in a play like this, who may resonate with it. And that's why even when we performed at the Meta Festival, there was a waiting for our play. And we had 140 members who were watching it. So I just think that it is not the responsibility of anyone, neither the audience nor the makers, कि हम इसको बचाएं, revive करें. मेरा personal point of view है कि हाँ हम उसको alive रखेंगे. मेरे को नहीं लगता theaters ever dying. That I don't think is going to happen. Now what we're talking about is scale.
newer forms are developing. Who thought that stand-up will become so big? Who thought that from ad makers taking models or prime actors, there are some creators sitting in UP right now जिनका ज़्यादा reach है अभी than even the biggest stars in the industry, and ad companies are going for their product endorsements to them. So these things will change, and you can't. Level of UK is of course going to be higher because it's a developed country. State is funding them. There are repertories there which are being funded, but that's not the case in many other parts of the world. So I genuinely think that, I mean, you can't fight that, and it'll be how it'll be. You can't control that. It is not under your control. Like, traditional forms are not evolving, they're not changing with the times, and they will die their death. Unfortunate but true. It will not stay as relevant. People who see value in it will continue to do it in the name of culture and everything else. That was actually very well answered, Gandharv. Thank you so much. And yes, we have already taken up this question. Vika, I hope that answers your question. Vika is also somebody who's an actor. He's a practicing actor, and he's looking for many opportunities within his country as well as in Mumbai to act. So this is actually a fantastic medium, Vika. I think you should definitely look at theater as one of the forms to explore while you're practicing for the art. Thank you for taking my question. It does answer that, Gandharvji. Thank you very much for that. And yes, I am doing theater also here. So thank you. Great. Great, Thank you so much, great. Vika. Moving to the next question, and I will take up I will just mention two more questions. So actually, I've clubbed the first question. Now, this was there while everyone was talking, and I know it has been answered, but just to give a bit of a construct to this question, what is the one way for the members who are here and the members who left because unfortunately they are not able to join or stay online? How is it that they can find good theater groups in their city? Number one, what should be the method of looking for it? And I'm talking about even smaller cities outside of the 5 metro cities. Having found, let's say, a theater group, it is very difficult to get to work in the theater groups primarily as an actor, because the number of members or the artists required for actors in theater is less. So how should one explore other projects? With that, there have been other questions. Should we also look at doing other things as part of theater outside of acting? Does it help my acting? I've just clubbed 3 main categories. Yes, Shardul. Yeah, anyone Anamika, else? Yeah. Anamika, would you like to answer that? I will answer for the second part. Yes, it does Okay. helps in acting. आप like for example मैं अपने experience से बताऊंगी. The moment I started doing makeup, मेरे dialogue सबसे कम है play में, और जिस तरह से भी वो होता है, पर मेकअप शुरू करने के बाद हर कैरेक्टर के साथ मेरा अपना रिश्ता बनने लगता है अलग तरह से. So it's like a process for me to get into the play. मैं अलग अलग कैरेक्टर का मेकअप जब कर रही होती हूँ, मेरा अपना रिश्ता वहां से बनना शुरू हो जाता है. So that's what I have learned कि हाँ, आप बाकी चीजें करते हो तो आप अपने प्ले से, अपने प्रोजेक्ट से उतना ही ज्यादा जुड़ते जाते हो एक्टर के तौर पे भी. और ये बड़ा सवाल जो मैंने देखा है, लोग हमेशा पूछते हैं कि यार अपने शहर में या अपने एरिया में एक अच्छा थिएटर ग्रुप कैसे ढूंढा जाए. ये जवाब किसी के अभिषेक, पास है? मतलब हाय तो हाँ, अभिषेक, मैं कहूंगी, अभी मैं सॉरी, हाँ अनामिका बोलिए. पहले थिएटर देखना शुरू करें. आप जब देखना शुरू करेंगे ना, आपको अच्छा और बुरा अपने तरह का समझ में आएगा और आपको सारे थिएटर ग्रुप समझ में आ जाएंगे. That's what I जैसे would like. ये बहुत सही बात है, क्योंकि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं केंद्रीय विद्यालय एंड्रसगंज में पढ़ता था और मुझे लगा था कि मैं कॉलेज में घूस देकर एडमिशन ले लूंगा, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे. वो अलग बात है कि मेरे पास घूस के भी पैसे थे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ऐसा कर पाऊं. तो मोहम्मद जीशान आयूब, जो कि अभी बहुत ही फेमस एक्टर हैं, वो मेरे प्लेयर्स के सीनियर भी रहे हैं, एनएसडी के एक्टर भी हैं. वो किसी तरह से somehow he was one of my common friends. तो उनसे जब मैंने मुलाकात की तो उन्होंने मुझे पहली बार बस स्टॉप पे, मुझे अभी भी याद है, स्कूल के बाहर एक बस स्टॉप था और मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये थिएटर करना है, कैसे करते हैं थिएटर, बताओ आप, किसको पैसे देने होंगे थिएटर के लिए. तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे पैसे दे के थिएटर नहीं होता, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा. कॉलेज में ऐसे राउंड्स होते हैं, इम्प्रोवाइजेशन होती है. उन्होंने मुझे इम्प्रोवाइजेशन वहीं खड़े खड़े बताया कि बस मान लो कि बस नहीं आ रही है तो किस तरह से बिहेव करोगे. जो भी मैंने पहली बार जिंदगी में इम्प्रोवाइजेशन शब्द समझा.
और फिर उन्होंने मुझे बोला जाके नाटक देखो। तो मुझे पहले लगता था कि नाटक बड़े बोरिंग होते हैं, नाटक कौन देखने जाएगा। तो मैं फिर भी किसी तरह से मतलब IHC में, इंडियन हैबिटेट सेंटर में, मैंने पहला एक एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन अनार्किस्ट, वो मैंने प्ले देखा था हिंदी में, हिंदी अडेप्टेशन था, और बाप मेरे रे। होश उड़ गए थे। और मैं नहीं जानता वो एक्टर्स कौन थे, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू गो एंड वॉच थिएटर। और आपके यस, अखबारों में ना वो लिखा होता है कि नाटक सब कहाँ होता चल है। रहा है, जी सब लिखा होता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक जी है। तो जी। वो बस अगर आई इसमें थिंक, हाँ यस शार्दुल। मैं बस एक चीज ऐड कर रहा था कि अभी जब हम मेटा में परफॉर्म कर रहे थे, हम 6 अवार्ड्स कैटेगरी में नॉमिनेटेड थे, और पता है उन सारी 6 अवार्ड्स कैटेगरी में कौन जीते? कौन? आसाम के आसाम के बहुत ही छोटे गांव से 5 या 6 लोग, जिन्होंने नाटक लिखा था, बनाया था, डायरेक्ट किया था। और ये मेटा, ये सबसे बड़ा थिएटर अवार्ड है हमारे देश का, जहां पे दे डिड अ क्लीन स्वीप। वो असम का वाह। इतना छोटा गांव है कि अगर उसका नाम भी लिया जाए तो शायद लोगों को नहीं पता हो। अब देखिए, लेकिन बात यही है कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप तो कम्युनिटीज में रहते हैं, आपके दोस्त हैं, तो देखना तो शुरू करिए ही, पर वो कम्युनिटी में आप करना शुरू करिए ना। वो आपको उससे कोई नहीं रोक रहा है। थिएटर के लिए एक 2 लोग लगते हैं, और जमीन लगती है करने के लिए। तो वो वहां से शुरू करना होगा। राइट। सो जैसे आप लोगों ने बताया, 3 मेन चीजें हैं। जस्ट टू रिकैप, बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पहला, थिएटर देखना शुरू करिए टू बी एबल टू आइडेंटिफाई आप किस थिएटर को अच्छा मानते हैं और किसको अपने कैटेगरी में, या मैं ये थिएटर नहीं करना चाहता हूँ, तो वो। सेकेंड इज टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू डोंट नीड अ वेरी बिग सेटअप। आराम से एक सिंपल सेटअप में भी आप थिएटर शुरू कर सकते हैं, चाहे वो अपनी सोसाइटी में ही क्यों ना करें, अपने बिल्डिंग वालों से शुरुआत करें। बट स्टार्ट विद, इफ इट इज अबाउट द आर्ट and not immediately about employment. ये जो और सवाल पूछा था, किसने पूछा था? ये 3-4 लोगों ने पूछा है, तो मैंने काफी सारों को क्लब कर दिया है। अच्छा सो फॉर अच्छा। एग्जाम्पल भावेश सुथर है, भुवेश तलवार है, काफी लोगों ने पूछा है। मैं बस मतलब बिकॉज़ आई एम जस्ट क्यूरियस कि वो कहाँ से हैं, मतलब कौन से शहर से हैं। सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, अगर अपना शहर लिखना शुरू करें, प्लीज कैन यू ऑन द चैट स्टार्ट राइटिंग डाउन विच सिटी आर यू फ्रॉम, और इफ यू आर फ्रॉम अ तो डिफरेंट कंट्री, विच कंट्री, दैट बी गुड। आई विल बी एबल टू टेल यू। सो नासिक से, दिल्ली से, नासिक, नासिक, अहमदाबाद, दिल्ली। यस दिल्ली। दिल्ली में तो बहुत इजी है, हाँ, पता सो दैट्स करूंगा व्हाई आई कि सेड कहाँ 5 मेट्रोज को छोड़ के, अगर जैसे मान लीजिए इन्होंने लिखा है बहरामपुर में है, देन बांदा यूपी से आए हैं, जालंधर से हैं, अहमदाबाद से हैं, नासिक आई मेंशन्ड ऑलरेडी, रायगढ़ उड़ीसा से है, सहारनपुर यूपी से है, जयपुर से है, वाशिम से है, बंसवाड़ा नियर उदयपुर। सो काफी सारे मेंबर्स हैं जो निजामाबाद तेलंगाना से है, No, इंदौर। the reason to ask this question was Dina कि like how Because, just शार्दुल ने yeah, जैसे बोला कि असम के किसी गांव जी जी का जी एक थिएटर ग्रुप है, जी और वो लोग थिएटर करते हैं, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं, अवार्ड जो है वो लेकर जाते हैं। जी So that basically answers our question that in cities like Ahmedabad or Nasik, these are all like big cities, यस or Delhi for that matter. मेट्रो तो मैं गिनूंगा ही नहीं। तो वो कहाँ से करें, कहाँ से ढूंढें, ये जो सर्च है, ये कहीं ना कहीं आपको खुद ही करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू लाइक स्टार्ट ओपनिंग योर माइंड एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द कल्चर। बहुत, हाँ, मैं जैसे अभी नासिक में, मैं अभी फिल्म फेस्टिवल के लिए गया था, वहां पे एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, वहां मुझे बहुत सारे लोग मिले। क्या आप वो जगह पे जा रहे हैं जहां पर कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं? बिकॉज जब तक आप अपने घर से बाहर निकलेंगे नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू वॉक टू दोस प्लेसेस, यू हैव टू टेक योर बसेस और ट्रेन्स एंड ऑटोज एंड रिक्शा, जिससे भी, जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध हो, आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप फिजिकली नहीं जाते हैं ना, तब तक आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट एक छोटी सी चीज अभिषेक, जितना छोटा हम्म, शहर होगा थिएटर करने के लिए एवेन्यूज उतने बेटर मिल जाते हैं आपको, क्योंकि जी, बॉम्बे में तो हमें स्पेस का ही प्रॉब्लम होता है, स्पेस इज सो एक्सपेंसिव, तो हम रिहर्सल करेक्ट। कहाँ करें? तो बल्कि छोटे शहरों में तो आपको स्कूल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जहाँ की स्पेसेस आपको आसानी से मिल सकती हैं। हाँ सही बात है। मैं मेघालय में गया था, मेघालय में शिट, गाड़ो गाड़ो हिल्स के पास एक कोई गांव था,
वहां पे कुछ नहीं था, पर वहां पे एक थिएटर ऑडिटोरियम था, जहाँ पे वहां के गांव के लोग जो शायद सुबह सब्जियां बेचते थे, शाम को वहां पे आके रिहर्सल्स करते थे. And I couldn't believe it. And it was a proper auditorium, like a nice, good acoustic वाला auditorium था. तो I think है, हमारे पास available है बहुत सारी चीजें. So great. I'll move to the next question very quickly. The next Yes. question is by Anand Kumar, specifically क्योंकि इनका question is from many theatre actors who have put up this similar question. तो आनंद कुमार का question जो है, how important is it to gauge the audience response while live in performance and bring any sort of possible improvisation in the individual act without tilting the storyline to cater to the audience? इसका जवाब कौन देगा? यार ये तो मौज की बात है, आप परफॉर्म कर रहे होते हो, एक्टर को मौज आती है तो वो ऑडियंस को इंक्लूड करके कुछ कुछ इम्प्रोवाइज करता है. बट आपकी बेसिक स्क्रिप्ट को वो हार्म नहीं करना चाहिए. पर आप नाटक में यही करने के लिए जा रहे हो तो वो अलग ट्रिप है. आप कुछ और करना चाह रहे हो भाई. अगर आपके नाटक का फॉर्म ये है, अलाउ करता है तो ठीक है, लेकिन हाँ. इम्प्रोवाइज करके आपने फॉर्म बदल दिया बाकी तो आई डोंट थिंक. बेसिकली तालियों के लिए परफॉर्म नहीं करना है. हाँ. एक्चुअली बड़ा ट्रिकी ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि आप इतने महीने रिहर्स करते हैं जो आपने प्लान किया है वो करने को, और अब वहां जाके आप पर्सनल तालियों के लिए अपना एकदम परफॉर्मेंस ही चेंज कर दें, तो नाटक के लिए तो है ही वो नेगेटिव, और एक्टर्स को भी पुट ऑफ कर सकता है. बट हैविंग सेड दैट, आपको वहां पर रहना पड़ेगा हियर एंड नाउ. आपको रिहर्सल भूलना पड़ता है, और वहां एक नया दिन है, ऑडिटोरियम एक नया स्पेस है, वो लोग से जब नाटक इंटरेक्ट करते हैं तो नाटक बदलता है. कई बार ये भी होता है आपने प्लान जो भी किया हो, जहां आपने लाफ्टर एक्सपेक्ट नहीं किया होता, रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया होता, वहां पे भी लोग हंसने लग जाते हैं. सो थिंग्स कैन चेंज इन एन अ प्लेस मेड in the space that is shared between the audience and the actors, so they both together make that performance of that day, so that you can't take away. But what you do with it, yes, it's very critical. Matlab, like Anamika said, depends on the form you're doing, the play you're doing. अच्छा, after we answered the question that you can reach out to theaters in your group, everybody started writing, पर वो लोग ना कर देते हैं. Everybody saying हमें नहीं लेते हैं, थिएटर में भी एडमिशन नहीं मिलती, फिल्म में नहीं मिलती, जाए कहाँ देखिए. So everybody is asking. And honestly guys, जब हम भी नाटक बना रहे थे, हम भी गए थे 2-3 लोगों के पास से बनाने without taking their names, and then we did it ourselves. आपको नहीं मिल रहा मौका, आप खुद बनाइए. वही मैं आपको बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें आपको स्केल नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आप खुद से अटेम्प्ट करिए, या आप जाके लोगों को ये कहिए कि हम बस रिहर्सल ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको उसका मौका देंगे लोग. अनुराग कश्यप ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली थी, वो फिल्मों के बारे में बोली थी, जो मुझे लगता है थिएटर के बारे में भी ट्रू है. उन्होंने कहा था नोबडी ओज यू अ फिल्म, सो नोबडी ओज यू थिएटर, नोबडी ओज यू एनीथिंग. So even तो if you can't write, sorry Shardul, go for it. हाँ, मतलब मेरा बस इतना ही कहना है कि आज के समय में जहां पे कि मोबाइल कैमरे से फिल्म बन सकती है, आज के समय में ना हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस हैं नहीं करने के. सही बात. आर्टिस्ट होना कोई नौकरी नहीं है. हाँ. आर्टिस्ट होना आप खुद हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, जैसा शार्दुल ने कहा. Great. So actually, हाँ, ये काफी लोग, I think that answers a lot of questions. ये बहुत अच्छा जवाब था गोचर. Yes. काफी लोग अपनी सिटी में इनवाइट कर रहे हैं बेरामपुर कि यहाँ पर काफी जगह आ जाइए. तो जिन जिनको अपने शहरों में जगह नहीं मिल रही है, हम स्मॉलर शहरों की लिस्ट सिनेमा पे डाल देंगे. काफी सारे लोग अपने शहरों में स्कूल ऑडिटोरियम भी ऑफर कर रहे हैं. तो जिन जिनको थिएटर करना है हमारे मेंबर्स में से, please do reach out. We have many cities. We'll be happy to host you. But I think it is all about the intent. If the intent is there, I think the outcome is possible, and that's what has been amazing. Aaj ka session was actually amazing to hear how we are talking about putting ourselves out there, whether irrespective of the kind of thought that we may have ki I am an actor, but I am also something more than that. And how is it that you explore the more is what is quite amazing, and it has been an amazing talk. A few last words from each one of you about and if also again to request everybody, हमने Avalanche की play की list, sorry, link
चैट पे डाल दी है। अगर नहीं मिली, आप हमें लिख सकते हैं, आपके पास हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, क्योंकि आपने ये टॉक ज्वाइन किया है, आपके पास हमारे मोबाइल नंबर्स भी है। प्लीज रीच आउट टू अस इफ यू नीड एक्सेस टू द टिकट्स। द लिंक इज बीन गिवन। मैं वापस से अभी बिफोर द सेशन एंड्स आई विल पुट इट अगेन। प्लीज डू, बिकॉज ओनली 100 सीट्स, ये हमने शायद बताया नहीं आपको, सिर्फ 100 सीट्स है, बहुत जल्दी भर जाएंगी। तो आपको अगर और कितने शोज हैं तीनों दिन? 7, मतलब No, 7 से 10? yeah, there are 4 shows, and per show we have 100 people, so we have 400 Okay. seats in total. तो आपके पास बेसिकली एक दिन में एक ही शो कर रहे हैं आप? Yeah, Yeah. Okay. And these are what time? What are the timings of the shows? 8 p.m. 8 p.m. 8 p.m. अच्छा, every day prime time basically. Yeah, ठीक है. yeah. So Okay. we are going to send out the details on WhatsApp again to everyone with the link, with the poster, with every detail. Please do take up the tickets at the earliest. Also हमारे community को आप freely join कर सकते हैं, उसमें भी इसी particular theater के details काफी डाले गए हैं. Just few words from everyone, and just to recap, as in recap some of the best points. Abhishek, you can choose to do that after we have the last few points from comments from all the speakers. I'm How- sorry, I live in the moment. I forgot the past. मैं एकदम but I think I will recap, not a problem. I will recap. But No, just for me, I think I'll say one thing. I mean, for me, एक बड़ा interesting takeaway है कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि like it started off for me, the discussion was, मैं देखना चाहता था कि actors, especially जो कि बॉम्बे में काम कर रहे हैं, how they are probably finding time from their personal life and professional life to get involved and make a play. And it ended for me, it just like a community getting together. एंड इट डजंट रियली मैटर कि आप लोग क्या बना रहे हो, आप लोग जो भी बना रहे हो, आप नाटक बना रहे हो, आप कोई गाना बना रहे हो, आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, आप कोई स्कल्पचर बना रहे हो, जो भी है, like it's just few people getting together from different lines of work, different age group, and working towards one purpose. ये बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे। तो मेरे लिए सारी चीजें जो है वो साइड हट जाती हैं, like सडनली द क्राफ्ट या प्रोफेशन। सबसे बढ़कर मेरे लिए ये है कि हाँ, कुछ लोग मिलकर साथ में कुछ क्रिएट करना है। एंड दैट्स द होल आइडिया ऑफ being a part of the creative world, to collaborate with like-minded people. super. Yeah. I think that's a good way. No, I agree with it. That's what I think it is. Please, other people speak. Shardul, Sarthak, anyone? Yes. No, I absolutely wholeheartedly agree with Abhishek, but I also understand the anxiety that people who are hearing this might have कि हम अगर professionally कर रहे हो तो क्या करें, मतलब तो वही है कि थोड़ा ना अलग है मेरे हिसाब से थिएटर और सिनेमा की। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया या बाकी चीजों की वजह से थिएटर और सिनेमा को मीडियम देखने लग गए हैं लोग। जैसे क्रिकेटर सबको बनना होता है, वैसे ही सबको एक्टर बनना होता है फेम के लिए। वो एक हिस्सा हो सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर जिन लोगों को देख के हम फेम की चाह करते हैं, कि मान लीजिए अभिषेक को देख के लोगों को बहुत चाह होती है, या इरफान को देख के, या नसीर साहब को देख के, इन लोगों को कभी बोलते हुए सुनिए तो आपको लगेगा कि पहले खुद को कल्टीवेट करना पड़ता है। आप इरफान साहब की आखिरी लेटर को पढ़ेंगे जो उन्होंने एक राइटर को लिखा था एक फिल्म बनाने के लिए, वो पढ़ के आप हैरान रह जाएंगे, द एक्सटेंट ऑफ रीडिंग दैट मैन हैड। तो पहले खुद को कल्टीवेट करना पड़ेगा, खुद को कल्टीवेशन में ग्रुप्स बन जाएंगे, और वही इकोसिस्टम आपका हमेशा साथ देगा, चाहे फिल्म बनाए चाहे थिएटर बनाए। I would like to add to Shardul. I'm quoting one of my theater teacher Adil Hussain. तो जब वो क्लासेस लेते थे तो वो एक ही बात कहते थे, नेम फेम मनी सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, सब आ जाएंगे अगर अपना काम आप पूरी तरीके से पूरे ट्रूथ के साथ करते जा रहे हो। So that's what I have learned. ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, हम एक्चुअली जो गैदर्ड जो ग्रुप है, जिस गंधर्व और शार्दुल जिसके फाउंडर्स हैं, तो बेसिकली ये बेसिक चीज जो करते हैं वो हम है कि थर्सडे को एक फिल्म की स्क्रीनिंग करते हैं, और उस स्क्रीनिंग के बाद उस फिल्म के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप यहीं से अगर शुरू करें कि आप कोई चीज, कोई भी आर्ट पीस, कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट, कोई थिएटर, कोई नाटक, कोई म्यूजिक, कुछ भी, जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप 4 लोग अगर जाके देखें वो, और उसके बारे में बात करें आपस में ही कि कैसा लगा, क्या चीज वर्क करी, क्या नहीं करी, अगर हम करते तो क्या अलग करते, या अप्रिशिएट करें, तो आई थिंक वो अप्रिसिएशन से ही आपको एक
राह मिल जाएगी। तो वो जैसे शार्दुल जो एंजाइटी की बात कर रहा है, मुझे लगता है वो हम खुद, शार्दुल इतनी फिल्म्स करने के बाद या ये लोग भी फिल्म्स करने के बाद भी वो करना चाह रहे हैं ताकि और सीखने को मिले, हर हफ्ते और सीखने को मिले और कुछ नया देखने को मिले। वहीं से अगर शुरू करें ना तो आई थिंक वो जर्नी हमारे लिए आसान होगी, क्योंकि ये प्रोसेस है। ये कोई एक दिन ऐसा नहीं आएगा जब हम कर देंगे सब, वो प्रोसेस चलता रहेगा, तो उसमें यही सब चीजें हेल्प करती रहेंगी। That was actually quite relevant. ये Thank खासकर उन लोगों के लिए जिनको Yeah. जिनको अपने शहर में थिएटर वाले बोल रहे हैं कि उनको भी नहीं लिया जा रहा, सो लाइक who are not getting admission their theater groups, you can do this उन्हीं is के पास great. जाके बोलो ये बेकार। Yeah, and I really want to tell them, ऐसा नहीं है कि हमें भी 4 जगहों पे लिया जा रहा है. We also have to absolutely go through the process. अभी देखने में लग रहा होगा कि हमने एवलांच बना लिया, जो मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें बहुत स्पेशल होती हैं. आई थिंक ये बहुत स्पेशल प्रोडक्शन था कि एक साथ 12 लोग जिनके थॉट प्रोसेस मैच किए, इतने आई थिंक बड़े प्यारे लोग हैं सब. बहुत बहुत मजा आया मुझे सबके साथ काम करने में. पर मेरी जिंदगी में ये एवलांच ही दोबारा हो जाए, कब होगा, ये वापस से मैं उसी कश्मकश में हूँ. हम होते हैं तो, एंड आई स्टिल वांटेड टू डू थिएटर. तो मैंने और अनामिका ने जो भी यहाँ पे हमने डिसाइड किया, हम सिर्फ 2 एक्टर प्ले उठाएंगे और अब हम उस पर काम कर रहे हैं. कोई नहीं है और, बस हम दोनों हैं. तो ये सिर्फ करने से होता है और होगा. तो ऐसा नहीं है कि आप और हम अलग अलग जगहों पे खड़े हैं. हम भी उसी पोजीशन में खुद को पाते हैं. Great. And Vikram, any last words from you as well? हाँ, मोरलेस सबने सब कुछ कह ही दिया है. तो यही है बातचीत कि करोगे तो होगा, और अब बस करते रहिए. इसके अलावा और कुछ नहीं. ज्यादा सवाल है जवाब. डोंट बी अ पैरासाइट. ये मत खाना बदोश मत बनिए कि दूसरा कोई कुछ बनाएगा तो उसमें मैं अटैच हो जाऊंगा. खुद करने की कुव्वत रखें, खुद करने की मेहनत करें. बिकॉज हमने नहीं सोचा था नाटक बनाते समय कि हम सी इन्फो के साथ ये कर रहे होंगे. ये करते करते हम ये यहाँ तक पहुंचे. जी, थैंक यू Amazing. सो मच. थैंक यू. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिनेइन्फो में हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा चैनल शुरू किया है, विच इज़ द थिएटर चैनल, एंड वी जस्ट इनिशिएटेड बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 160 इंक्वायरीज आए हैं. तो हम एक सेपरेट चैनल ही शुरू कर रहे हैं. शहर के हिसाब से, थिएटर ग्रुप के हिसाब से हम लोग वहाँ पर इंफॉर्मेशन डालेंगे कि कौन से थिएटर ग्रुप्स हैं, कौन से शोज चल रहे हैं, और कौन से, जैसे इनसाइडर या पेटीएम या बुक माई शो में आप जाके टिकटें ले सकते हैं. वो सारा डिटेल हम धीरे धीरे डालने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉपुलेटिंग अ चैनल जस्ट सो दैट इन केस यू आर स्टिल, जैसे अभिषेक ने कहा कि घर से बाहर निकलिए, वो भी नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट सिनेइन्फो में देखने के बाद तो घर से बाहर जाके आप थिएटर देख सकते हैं. So we will populate this channel. We will also populate theatre groups and communities in your local cities, so that you can find them and you can connect with them. अब उसके आगे आपकी खुद की सोसाइटीज है, जैसे कहा गया, आप अपना नाटक शुरू करिए. सिनेइन्फो में वो पोस्टर भी डाल दीजिए जो आपके सोसाइटी में है, हम वो भी डाल देंगे. So we are more than happy to promote artists and innovators in every sense across the country as well as internationally. So thank you so much. Thanks to all the speakers who've joined today. I'm very grateful to you कि आप लोगों ने सबने time निकाला on a Sunday. And once again, thank you to Gandharv, Abhishek, Shardul, Sarthak, Shweta, Anamika, and Vikram. Thank you so much. It has Thank been a you. wonderful evening. हमारा पहला सेशन था ऑन थिएटर, and it will not be the last. We will actually put up one session every 45 days talking to a theatre group. So definitely we are going to continue this. But once again, do not miss the Avalanche Theatre. 7th से लेके 10th मई तक है at 8 PM. एक ही शो है. G5A Warehouse मुंबई में है. सारे डिटेल्स हम आपको भेज रहे हैं with the poster on your WhatsApps. With Thank this new contemporary group, The Gathered. Yes. Really looking forward, guys. Great. Thank you, and all the best to the Avalanche team and to Shardul and Gandharv in Gathered. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you all for joining. Bye.